اور اللہ تعالیٰ کی فضل کے بغیر ہم ایک چھوٹے سے گناہ سے نہیں بچ سکتے. ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج ہے. ہم کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے. مسئلہ ہماری ہدایت کا ہے، ہماری زندگی میں صفات آنا ہے. ایمان صحابہ، اعمال صحابہ، صفت صحابہ، یہ ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے اللہ کے راستے کی جو کہ صحابہ سے راستے میں آئے. جس لائن کی محنت کرتا ہے بندہ اس لائن کا بنتا ہے. صحابہ والی محنت کریں تو صحابہ جیسے بنیں گے. اگر صحابہ جیسے نہیں بن سکے اور راستے میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں صحابہ کے سب کا کھڑا کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہماری محنت اور نیت صحیح ہونا چاہیے. دعوت کی جو محنت ہے اس کی بنیاد قربانی مجاہدہ ہے. بغیر خروج کے، بغیر مجاہدے قربانی کی دعوت میں تصور نہیں ہے. نبیوں کو، صحابہ کرام کو جو ہے مجاہدوں میں قربانی میں رکھا گیا. اس لیے قربانی مجاہدے سے گھبرانا نہیں ہے، مانگنا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا ہے، لیکن کام کا نفع دیکھ کر مجاہدہ قربانی اختیار کر لے. قربانی مجاہدہ ناگواریاں پیش آ جائیں گی 3 کام کرنے کے. سب سے پہلے کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا کہ تمہاری وجہ سے حالات پیش آئے، تمہاری وجہ سے بس ٹوٹ گئی، تمہاری وجہ سے ٹرین ٹوٹ گئی. کسی حال کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا، بلکہ اللہ کے ارادے سے اور اللہ کی مرضی سے دعا جو بھی دعا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. دوسرا، ساری جماعت اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے، دعا کرے، ذکر کرے. اور تیسرا جو ہے مشورہ کرنا کہ آگے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس حال میں خیر ڈال دیں گے اور حالات کو درست کر دیں گے. قربانیاں مجاہدے ناگواری آسان نہ ہوگی. ہمارے سامنے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہوں، ہمارے بڑوں کی مجاہدے ہمارے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، قربانی میں بھی امام ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس راستے میں جتنا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ادھر کسی کا بھی معاملہ نہیں ہوا ہے. 30 دن 30 راتیں گزر جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح چیز کھانے کو میسر نہیں آتی. معاشرہ رضا فرماتی ہے کہ ہم 2 مہینے میں 3 چاند دیکھتے تھے. اللہ کے نبی کے کسی بھی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پر گزرتا، کھجور اور پانی. کھجور کالی ہوتی ہے، پانی فاقے کی وجہ سے کالا نظر آتا تھا. ایسے حالات میں ہمارے نبی نے دین کا کام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی معجزے کا استعمال مجاہدے کو دور کرنے نہیں کیا. معجزے کا جو استعمال ہوا ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے، اپنے مجاہدے کو دور کرنے نہیں کیا ہے، بلکہ خود مجاہدے سے گزرے ہیں اور صحابہ کو مجاہدے سے گزارا ہے. خندق میں ایک صحابی ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہے. رسول اللہ نے بتایا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. ایسے حالات. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روٹی بنائی، اپنے ابا کو پیش کیا، عرض کیا ابا جان کئی دن بعد میں نے آج روٹی بنائی تھی، میرا دل چاہ کے آپ کے بغیر نہیں کھاؤں. اللہ نے فرمایا بیٹی یہ پہلا لقمہ جو تمہارے باپ کے پیٹ میں 3 دن بعد جا رہا ہے. یہ حالات کی قربانی ہمارے سامنے. صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں جاتے تھے، ہم کو ایک کھجور ملتی تھی، 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی تھی، اور اس کی قدر تب ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی، مچھلی چوس کر کام چلا. اب یہ دیکھو قربانی ملا، اپنی قربانی ملی. اگر ہم کو ایک کھجور دی جاوے تو ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تعلیم بھی نہیں کر سکتے، کوئی عمل نہیں کر سکتے. اگر ہماری قربانی کو قربانی سے ملائیں گے تو ہماری قربانی ہلکی اور معمولی ہو جائے گی. ہماری جماعتیں صرف 5 بار دسترخوان لگاتی ہے، زیادہ نہیں کھاتی. کتنی بار کھاتی ہے؟ صرف 5 بار. 2 ہلکے تعلیم کے اور 5 ہلکے دسترخوان کے. تاجد میں چائے بسکٹ کھا لیے، پھر صبح کا ناشتہ کریں گے، ابھی حجم نہیں ہوا کہ دوپہر کا کھانا آ گیا، پھر شام کو چائے اور کچھ کھا لیے اور رات کا کھانا. زیادہ نہیں کھاتے اور مجاہدہ کرتے ماشاءاللہ. کریں گے نا ایسے ہی تو یہ مجاہدے کا ہم تصور نہیں کرتے. اور دوسری چیز سامنے رکھنا ہے اللہ کے راستے کے فضائل. کیا اجر ملے گا؟ اللہ کے راستے کی قیمت ہمارے یقین میں آ جائے. فضائل کی حدیث ہم سنتے ہیں اور حدیثوں کا یقین آئے گا نا تو ہم کو واپس جانے کا دل نہیں کرے گا. اتنے انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں. اللہ کے راستے میں صبح شام نکل جانا دنیا اور معافیت سے بڑھ کر. اس کے معنی کیا؟ علماء کرام بتاتے کہ دنیا میں جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں، جتنی نیکیاں ہو رہی، بھلائی ہو رہی ہے، ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اللہ کے راستے کے خروج کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اللہ کے راستے کا خروج بڑھ جائے گا. دنیا کی ساری نیکیوں سے بڑی نیکی اللہ کے راستے میں نکل جانا ہے. سوچو تو صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے عبداللہ بن رواحہ ٹھہر گئے. کتنی بڑی نیکی ہے کہ مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، امام رسول اللہ ہے، جمعہ کی نماز ہے. اتنی بڑی نیکی تھی کہ نبی جی کے پیچھے نماز پڑھی. حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ صبح نہیں گئے؟ عرض کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا تھا. اللہ نے فرمایا کہ صبح جانے والے تم سے 500 برس آگے نکل گئے.
اور ایک رات فرمایا دنیا کا سارا مال تم کو دے دیا جائے اور تم اس کو خیر کے کام میں لگا تو صبح میں جانے والوں کو اجر حاصل نہیں کر سکتے. یعنی نبی جی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر تھا اللہ کے راستے میں نکل جاتا. ایک جماعت میں اس کے لگ تم رات کو چلے جائے یا صبح رات ٹھہر کر صبح چلے جائے. اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے تم جنت کے باغوں میں سے ایک رات ایک جنت کے باغوں میں سے یہ رات گزارو. یعنی اللہ کے راستے میں رات گزارنا جنت کے باغ میں رات گزارنے کے برابر. یہ سارے فضائل. ایک صحابی اللہ کے رسول 6000 سونے کے سکے ہیں اس کو اگر خیر کے کام میں لگا دوں گا تو اللہ کے راستے کا جو جوان جال اس کا جل مل جائے گا. اللہ کے نے فرمایا اس راستے میں نکل کر سونے والا وہ تیری خرچ کرنے سے بہتر ہے. 6000 سونے کی سکے کی کیا قیمت ہو اس سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں سونے. اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر نکل جانا اپنے مقام پر ساری زندگی بھر کے نئے کامال سے بہتر ہے. کیا نہیں کیا کیا گرا آپ کو بتائیے. شمار بے شمار نہیں کیا. سب قدر سے زیادہ نہیں کیا اللہ کے راستے کی نہیں کیا. تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑے رہنا ساری رات شب قدر میں حضرت اسود کے سامنے بات کرنے سے بہتر. لوگ شب قدر تلاش کرتے ہیں اور شب قدر کی نیکیاں صبح شام دن رات آپ کی شب قدر سے بڑی. عبادت اور دعوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. عبادت دعوت کا کوئی مقابلہ نہیں. بھائی اور بہنوں ہم سب کو اس راستے کی قدر ہو جائے. اللہ سے مانگنا بھی ہے. ابھی ہم کو دعوت کی سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ سے دعوت کی سمجھ مانگو. جس دن اللہ تعالیٰ اس کام کے نفع کو دلوں پر کھولیں گے اس دن اپنی پوری زندگی لگانا آسان ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سب سے فہیم شخصیت سب سے زیادہ عقل مند شخصیت دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے عقل کے 99 حصے دیے. نبی جی فرمانے میرا جی چاہتا میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دیا جاؤ. دوسری زندگی پھر شہادت, تیسری زندگی پھر شہادت, 7 زندگیاں مانگی اور 7 بار اللہ کے راستے کی شہادت مانگی. اس سے بڑی کیا نہیں کی. تمہارے جذبہ ہو اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ, شوق شہادت کے ساتھ اللہ کے راستے میں پھرنا, ملکوں میں جانا, صوبوں میں جانا, پھرتے رہنا یا تو ہماری بہت آ جائے. اس کے ہم سب کام کی نیت سے جائیں گے, سب کام کریں گے نا انشاءاللہ. آرام کی نیت سے جا لو اور مسترات کام کریں گے, ہم آرام کریں گے. ایسا نہیں کرنا, آپ بھی کام کریں. ہاں اس کے لیے سب سے پہلی جو طاقت جماعت کی ہوتی ہے جماعت کی فکر کی طاقت. جماعت فکر مند رہے. بے فکری دائی کی موت ہے اور فکر دائی کی حیات ہے. آپ فکر مند رہو گے آپ کی فکروں کے اثرات پورے عالم میں پڑیں گے. آپ کے فکروں کے اثرات اس علاقے میں پڑیں گے. فکر جو ہے نا مدعو کو تیار کرتی ہے. فکر کے اثرات پڑتے ہیں. فکر دلوں پر اثر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے اتنا بڑا کام لیا ان کی فکروں کی وجہ سے. ہاں ایک سیدھے سادے عالم تھے, غیر معروف, کوئی جانتا نہیں تھا, دبلے پتلے تھے, بیمار رہتے تھے, زبان میں لغت تھی, لیکن امت کا درد تھا, امت کی فکر تھی, امت کا غم تھا. یا نظام الدین پورا جنگل تھا, کوئی عمارتیں نہیں تھی, جنگل تھا. یا جنگل میں جا کر رویا کرتے تھے رات میں, اللہ سے امت کو مانگا کرتے تھے. اللہ کو ان کا مانگنا, رونا, فکر, غم پسند آ گیا. اللہ نے ان کے ذریعے سے کام کو سارے عالم میں پہنچا دیا. حج کے علاوہ کسی ملک میں گئے نہیں. 250 ملک میں کام پہنچا. کیسے پہنچا؟ فکروں سے پہنچا. فکریں پہنچتی ہے, فکریں لاتی ہے. یا عمارت بن رہی تھی, نظام الدین مسجد کی عمارت بن رہی تھی, حضرت مولانا صاحب حضرت فرمایا کرتے تھے یہاں پر بڑے کمرے بنانا, روشن دار کمرے بنانا, ہوادار کمرے بنانا, ٹھنڈے ملک کے لوگ یہاں پر آئیں گے. ساتھ والے ہنستے تھے. حضرت فرماتے تھے یورپ امریکہ کے لوگ آئیں گے. ساتھ والے کہتے تھے حضرت یہاں دلی سے, میرٹھ سے, میوات سے کوئی نہیں آتا ہے اور آپ کہہ رہے یورپ امریکہ والے آئیں گے. حضرت تو دنیا سے چلے گئے لیکن اللہ نے پوری دنیا کو متوجہ کر دیا. ابھی کل یہاں پر یورپ کا جوڑ ختم ہوا, 25 ملکوں کے لوگ آئے تھے. 25 ملک کے لوگ ایک ساتھ آئے. ایک دسترخوان پر 90 ملکوں کے لوگ یہاں کھانا کھا چکے ہیں. کون لا رہا ہے؟ اللہ لا رہا ہے, فکروں پر لا رہا ہے. تو فکروں کے ساتھ کام کریں گے, اس کے اثرات پڑیں گے. فکر اس بات کی کرنا ہے کیسے امت جو ہے جہنم سے بچے. تو ابھی سے تھوڑا سوچو. او بھائی ابھی آپ کو 40 دن 40 رات سنا ہے انشاءاللہ. ابھی یہاں سنو دھیان سے بات. یہاں تو جاگو, مرکز سے سوتے جاؤ گے تو سارا سفر سوتے رہو. میں آپ سے کیا عرض کروں, مستورات جو ہے نا جاگتی, آپ نے کاغذات بتایا آپ لوگوں کو, مستورات جاگتی ہے اور آپ لوگ سوتے ہو. مستورات 20 رات جاگتی ہے, 20 رات سوتی ہے. پتا آپ کو پہلا دن گھر نیا ہوتا ہے تو جاگتی بیچاری, دوسری رات سوتی ہے, پھر تیسرے دن پھر سے گھر بدل جاتے ہیں تو تیسری رات جاگتی, چوتھی سوتی ہے, 5ویں جاگتی, 6ٹھی سوتی ہے. 20 رات جاگنے والی ہو اور 20 رات سوئے گی. اور آپ لوگ انشاءاللہ 40 دن 40 رات سونے والے ہیں. تو اس کے لیے ابھی تو سنو دھیان سے.
تو میں بس یہ کر رہا تھا کہ ہماری فکر یہ ہو جو ہمارے نبی کی فکر تھی کہ کیسے امت جہنم سے بچے جنت میں چلی جا رہی ہے. امت کو جہنم سے بچانا ہے, جنت لے جانا ہے, تو ان کو دیندار بنانا ہوگا. اور دیندار بنانے کے لیے ان کو دین کی محنت لگانا ہونا, اور دین کی محنت لگانے کے لیے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا. دعوت کی جو محنت ہے نا, وہ دعوت کی محنت دین کا کارخانہ ہے, فیکٹری ہے, فیکٹری. یہاں پر دین پروڈیوس ہوتا ہے, دین بنتا ہے. آج امت کی زندگی میں دین ہے, بے شک اسلام ہے, لیکن مردہ ہے, زندہ نہیں. جب دعوت کی محنت میں بندہ لگتا ہے تو اس کا اسلام ایمان کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے. کیونکہ ایمان, یہ دعوت, ایمان جو ہے ایمان اسلام کی روح ہے. روح سے انسان زندہ ہوتا ہے, ایسے ایمان سے اسلام زندہ ہوتا ہے. جب اسلام زندہ ہوتا ہے تو اسلام بڑھتا ہے, بڑھتے بڑھتے مکمل ہوتا ہے. تو دعوت سے دین زندہ بھی ہوگا, دین کی تکمیل یعنی دین مکمل بھی ہوگا, دین کی حفاظت بھی ہوگی, دین باقی بھی رہے گا, دین کمال تک پہنچے گا, دین اپنا نفع دے گا. ساری چیزیں دین سے متعلق ہو, دعوت کی محنت سے ہو جائے. ہمارا کام ہے ایک بار فیکٹری میں انسان کو ڈال دو, دعوت کی فیکٹری میں چلا گیا, بننا شروع ہو گیا, اس کا ایمان بنے گا, اس کی عبادت بنے گی, اس کے معاملات بنے گی, اس کی معاشرت بنے گی, اس کے اخلاق بنے گی. اس کے لیے عبادت سے روکنے کے لیے بہت شہید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں, فرمایا کرتے تھے عبادت سے روکنے کے لیے ایک شیطان کافی ہے, اور دعوت سے روکنے کے لیے 30 شیطان محنت کرتے. 30 شیطان محنت کرتے کہ دعوت کی محنت میں نہیں لگی, اللہ کے راستے میں نہیں جاؤ, لیکن جائے گا اس کا دین بن جائے گا. اور عبادت کرے گا بغیر بنی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کچھ کام نہیں دے گی. امت عبادت تو کر ہی رہی ہے نا, لیکن عبادت کچھ کام نہیں دے رہی, کیونکہ عبادت بنی نہیں ہے, عبادت زندہ نہیں ہے, نماز زندہ نہیں ہے, دعائیں زندہ نہیں ہے. تو امت کو دعوت میں لگانا, امت کو اللہ کے راستے میں نکالنا, یہ ہمارا کام ہے. آپ حضرات جاؤ گے, آپ کو کوئی کوشش کرنا ہے جماعتیں خوب نکالنا. جماعتیں جاتی ہے, کھانے خوب کھا کے آتی ہے, جماعتیں نکالتی نہیں. آپ جماعت پر فوکس کرو, آپ دھنی کی طرح کام کرو. ہمارے کھانے پینے کا سونے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے, ہم کو محنت کر کے جماعت ہی نکالنا ہے. جب تک یہ محلے سے بستی جماعت نکلے نہیں, ہم کو چین نہیں آئے, ہم کو اس دن کھانا بھی نہیں اچھا لگے. چلے اور اشرے کی جماعتیں جو ہے نا وہ تو ادھار بنتی ہے, کیونکہ چلے اشرے میں ایک دم سے مستورات نہیں نکل پاتی ہے. بچوں کا مسئلہ ہے, چھٹیوں کا مسئلہ ہے, الگ الگ مسائل رہتے ہیں. چلے اشرے کی جماعتیں آپ کو وہاں سے ادھار مل جائے گی, اور وہاں سے جو قدیمات کے جوڑ, پرانی بہنوں کا جوڑ اگر آپ کرو گے نا تو وہاں سب کو ملے گا. تو آپ جاتے ہی ان سے پوچھو آپ نے قدیمات کا, پرانی بہنوں کا جوڑ کیا نہیں کیا. انہوں نے کہا ہمارا جوڑ ہو گیا. تو اس جوڑ میں کیا جماعتیں بنی, جماعت بنتی ہوتی ہے نا, وہ ان جماعتوں کا آپ ان کے حالات معلوم کرو, اور ان جماعتوں کی آپ وصولی کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کے سامنے کام آ گیا. اگر جوڑ نہیں ہوا ہے تو جوڑ کرو, اور اس میں جماعت بندی کرو. آپ کی چلے کے اخیر میں جوڑ کی تاریخ رکھو, چلے کے اخیر میں وہ جوڑ کی تاریخ رکھنا. 40 دن آپ کے پاس محنت کے ہوں گے, مقامی کا شخص مل کے وہ جوڑ کی محنت کرنا, اور جوڑ سے آپ کو چلے کی ایسی جماعتیں ملے گی. لیکن 3 دن کی جماعتیں آپ کو روزانہ نکالنی, روزانہ 4-5 جوڑ تیار کرنا کوئی بڑی بات نہیں. جماعت تو اللہ بنائیں گے, لیکن اگر آپ نیت کر لیں گے تو 40, 50, 60, 70, 80 جماعتیں 3 دن کی نکلتے. اگر آپ صحیح رخ پر فکر کرو گے, محنت کرو گے, دعا کرو, تو نیت کرتے ہیں زیادہ جماعتیں نکالنے کی. کہ جتنی نئی بہنیں آپ کی جماعت کے ذریعے سے نکلے گی, آپ کی مقصد کے ذریعے سے نکلے گی, وہ ساری بہنوں کا کھاتا آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا. ساری بہنوں کی نیکی آپ کے کھاتے میں آ جائے گی. وہ زندگی بھر جتنا کام کرے گی, مقصد 3 دن لگاتی ہے, پھر اشرے لگاتی ہے, پھر چلے لگاتی ہے, پھر ملکوں میں جاتی ہے. تو یہ زندگیوں کو کمانے کا کام ہے. ہماری بہنیں جی جان لگا دے, آپ جی جان لگا دو کہ وہاں سے آپ کو جماعتیں نکالنی ہے, روزانہ جماعتیں آپ کو 3 دن کی نکالنی ہے. اس کے آپ اثرات دیکھو. ایک بار مسئلہ 3 دن لگا لیتی ہے نا, مسئلات کا 3 دن مرد کے چلنے کے برابر ہوتا ہے, اور مسئلات کا چلہ مرد کے 4 مہینے کے برابر ہوتا ہے. ہاں, یہ کوئی کم نہیں ہے, وہ بہت محنت کرتی ہے اور بہت کام لیتی ہے. مسئلات پر اللہ نے استقامت رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مرد مرتد ہوئے, لیکن ایک بھی عورت مرتد نہیں ہوئی. ہاں, استقامت کی. ہاں, اس کے لیے ہمارے کو کوشش کرنا ہے کہ روزہ جماعتیں خوب نکالنا, اور قدیمات کا جوڑ کر کے چلے اشرے کی جماعت بھی نکالنا. کرو گے انشاءاللہ. جماعت سے نکالنے کے لیے چند باتیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ بتاتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جاؤ گے نا, وہ آپ کو بتائیں گے امیر صاحب آپ کا رخ بن گیا ہے, آپ کو پورے ضلع میں کام کرنا ہے, پورے حلقے میں کام کرنا ہے. یہ آپ کرو گے 2 دن اس محلے میں, 2 دن اس محلے میں, 2 دن اس محلے میں. ان سے کہنا ہم برکت بانٹنے نہیں آئے ہیں, ہم کام کرنے آئے ہیں. 2 دن کے اندر تو یہ شیطان کا اوچک لینا ہے. جماعت شیطان کا اوچک لینا. پہلے دن تعارف ہوتا ہے, دوسرے دن تشکیل ہوئی, جماعت آگے بڑھی. ابھی آج کی کارگزاری میں وہ آصف کی جماعت نے بتایا, وہ 2 دن ٹھہراتے تھے, جماعت نہیں بڑھ پائی. اس کے لیے 2 دن کسی محلے میں ٹھہرنا, کم سے کم 4 دن
ज्यादा से ज्यादा 8 दिन एक एक मोहल्ले में एक एक मस्जिद में ठहरना, मस्तूरात 2-2 दिन में घर बदलती रहेगी। इस तरह से 4 से 8 दिन में अच्छी खासी जमात वसूल हो सकती है और अच्छा खासा मुकामी काम जमाया जा सकता है। इसके लिए आप लोग अच्छी तरह एक एक मोहल्ले में ठहरना। दूसरी बात यह करनी है, नगर जमात बनाने के लिए नए नए इलाकों में जाओ, बस्ती में अंदर इंटीरियर में जाओ, देहातों में जाओ। देहात में जाने को आपको थोड़ी घबराहट होगी, थोड़ा मुजाहिदा होगा, परेशानी होगी, लेकिन आप यकीन जानो काम करने का असल मजा देहातों में और मुजाहिदे में है। और वो लोग प्यासे हैं, कोरे हैं, कलमा नमाज गुस्ल वसूल कुछ नहीं जानते। जमातों की कारगुजर आती है, औरतें मस्तूरात को, जमात की मस्तूरात की पैर पकड़ लेती है और कहती है तुम यहाँ से जाओ मत, तुम जाओगी तो हमको दीन सिखाने वाला कोई नहीं है, बरसों तक या कोई नहीं आता। 6-6 साल गुजर जाते हैं, 2-2 साल गुजर जाते हैं, जमातें पहुंचती नहीं देहातों में। बेचारे बगैर कलमे नमाज की जिंदगी गुजार दी है। कितने जनाजे बगैर गुस्ल के दफन कर दिए गए, जनाजे की नमाजें भी नहीं हुई। ऐसे हालात है देहातों। हिंदुआना रिवाज की जिंदगी गुजार दी है, घरों में मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, क्या क्या नहीं है, कब्रों की पूजा कर दी है। हाँ, ऐसी जगहों पर जाओगे तो काम करके आओगे। शहरों में रहोगे तो आराम करोगे, खाओगे पियोगे और बस रूटीन वर्क हो जाएगा। 2-2 दिन घुमाते रहेंगे आपको मजा आ रहा है, बोले माशाल्लाह मजा आ रहा है काम करने, कुछ काम नहीं होगा। शहर में बड़े बड़े जिम्मेदार आएंगे आप घबराओगे काम करने को, बड़ी बड़ी आपा आएंगी, आपके उस्ताद घबराएंगे कि मैं क्या बोलूंगी इनके सामने। देहातों में सब ओपन माइंड काम करेंगे, फ्रीली काम करेंगे। कोने लोग बेचारे सीधे साधे लोग कुछ जानते नहीं, आप जो भी उनको दोगे आपकी बात ले लेंगे इंशाल्लाह। तो देहातों में जाना, इंटीरियर में जाना, नए इलाकों में जाना, नए मकानों में जाना, करोगे इसकी कोशिश। तीसरी बात ये बताते हैं कि आप जिस बस्ती में पहुंचते हो ना, तो आपको मशवरे की फिक्र होती है, मशवरा करना है, मशवरा करना है। मुकामियों का आप लेकर मशवरे में बैठ जाते हैं। अब उनका सारा टाइम आधा पौना घंटा 1 घंटा मशवरे में चला जाता है। फिर मुकामी साथी बोलते साहब मैं जाता हूँ, शाम को आऊंगा। सुबह की मुलाकातें और सुबह का इब्तिदाई गश्त रह जाता है। फिर ऐसे बात की तजवीज करते आप मशवरा, जो मसला आपको देते हो जोर से जोर का दे दिया करो, जोर से जोर मशवरा दे दिया करो, ताकि मशवरा घर में पहुंचेगी, उनके पास जोर तक का मशवरा मौजूद है, अपनी तालीम शुरू कर देगी, अपने आवाज शुरू कर देगी। आप जाते ही खुसूसी मुलाकातें और इब्तिदाई गश्त शुरू कर दो। 5 लेबर है, 5 जोड़ियां बनाओ, पूरी बस्ती में फैल जाओ, 50, 60, 70 मकान में दावत पहुंचा दो। हमारी जमात अब्दुल रहमान भाई के मकान पे आई है। हमारी जमात की तालीम का टाइम सुबह 10 से 12 है, दोपहर में 2:30 से 4 है। दोनों टाइम की दावत चलाओ तालीम की। और ये भी कहना उनसे कि फजर से लेकर असर तक सारी मसला जब चाहे पहुंच सकती है, हमारी जमात आपका इस्तेमाल करेगी। इस तरह से पूरे दिन की दावत चलाओ, दोनों टाइम की तालीम की दावत चलाना। एक टाइम की जमात अक्सर दोपहर में दावत चलाती है कि भाई दोपहर में तालीम में आ जाना। तो समझते हैं कि सुबह की तालीम हमारी प्राइवेट तालीम है और दोपहर की तालीम सबकी तालीम। ऐसा नहीं है, दोनों वक्त की तालीम मुकामियों की भी है और जमात की भी है। तो दोनों वक्त की तालीम की दावत चलाने से नफा होगा। जिस बहन के पास सुबह टाइम है वो सुबह आएगी, जिसके पास दोपहर में टाइम है दोपहर में आएगी। घर में 2-3 औरतें होती ना, उसमें कहीं गया तो सुबह चली जा, मैं तेरे बच्चे देख लेती हूँ, तो दोपहर में मैं जाऊंगी तो मेरे बच्चे देख लेना। इस तरह से बदल बदल के बहनें आएंगी सुबह शाम, तो आसान होगा, ज्यादा बहनें पहुंचेगी, ज्यादा तश्कील काबू में आएगी। करेंगे ऐसे इंशाल्लाह। एक और बात याद करते, कभी ऐसा होता है मस्तूरात एक मोहल्ले में ठहरी है, उस मोहल्ले की मस्जिद में कयाम की इजाजत नहीं है, काम कर सकते हैं आप, हजरत को कयाम करें दूसरे मोहल्ले की मस्जिद में। अगर आप दूसरे मोहल्ले की मस्जिद में कयाम करते हो, लेकिन काम इसी मोहल्ले की मस्जिद में आके करना है जहाँ मस्तूरात ठहरी है। अगर आपने उस मस्जिद में काम किया, मस्तूरात ने यहाँ काम किया, तो इस मोहल्ले की मस्तूरात पे काम होगा, उस मोहल्ले के मर्दों में काम होगा, दोनों जगह काम अधूरा रहेगा। तो इस मोहल्ले में आके काम करना, आमान सारे यहाँ करना, वहां जाके आराम कर लेना। पर मेरी बात तो, ताकि क्योंकि जो आपके पास नाम आएंगे ना, आपको मेहनत इसी मोहल्ले में करनी। हमारी बहनें रोजाना नई नई बहनों को लेकर बैठे, उनको इंफरादी दावत दे, उनसे इख्तलात करे, उनको तश्कीलें करे, तैयार करे। 4-5 बहनें रोजाना नए नए नाम, ये इंफरादी मुलाकातें हैं, ये खसूसी नाम है, ये बहनों से आना चाहिए। वो बहनों की तश्कील करेगी, बहनें कहेंगे हम तैयार हैं, हमारे शौहर को तैयार करो, नाम लिख के देंगे। भाई 4-5 बहनें आज हमने तश्कील की है, ये बिल्कुल नकद जाने पर तैयार है, आप इनके शौहर की तश्कील करो। आप जाकर उनके महरम से मिलोगे, उनकी तश्कील करोगे, जमात रवाना हो जाएगी। आपने कुछ मुलाकातें की, मर्द हजरात तैयार है, मस्तूरात तैयार नहीं है, उनसे कहना कि आप अपनी मस्तूरात को हमारी जमात के पास भेजो और हम जो है यहाँ से नाम लिखकर भेज देंगे आपका। आप नाम लिखकर भेजोगे, रोजाना 4-5 नाम आप भेजो मस्तूरात को। ये देखो ये लोग आएंगे, ये बहनें आएंगी, इनकी तश्कील करना, फला की वालिदा आएगी, फला की अहलिया आएगी, फला की दुख्तर आएगी, जो भी है इनकी तश्कीलें करो, इनके महरम तैयार है। इस तरह से रोजाना 4-5 नाम मस्तूरात के मर्दों में आ रहे, मर्दों से मुस्तरात में जा रहे हैं। ये फिक्रों वाले नाम है, ये खुसूसी नाम है, ये इख्तिलात ये मुलाकातों वाले नाम है। इससे जमात बनती है। जो नाम बयान के बाद आते हैं ना, बरकती नाम होते हैं,
उसमें सब बरकत के लिए नाम लिखा थे, 50 नाम 40 नाम आ गए, हमको दिखाते वो नाम सारे के सारे डायरी में जाते, उसकी मेहनत नहीं हो पाती। लेकिन एक खास जो तश्कील होगी उससे जमातें बनेगी, इसको कहते हैं फिक्र वाली जमात। इस तरह से हमारी बहनें भी, आप भी इनफरादी तश्कीलें कर करके नाम भेजोगे इंशाल्लाह। रहबर की तश्कील पहले दिन कभी नहीं करना, वरना रहबर गायब हो जाएंगे, बोलेंगे डेंजर जमात से अपने ऊपर ही हाथ डाल दिए, गायब हो जाएंगे तो काम अधूरा रह जाएगा। हिकमत से काम करो, रहबर को मुकाबियों को अपने साथ चलाओ, मेहनत में खुद भी थको उनको भी थकाओ, खुद भी थको उनको भी थकाओ। जमात बन गई, अब आप पूछो भाई देखो जमात तो बन गई, लेके कौन जाएगा? तो कबीर साहब बड़ी मेहनत से जमात बनी है, मैं ही चला जाता हूँ, उसकी मेहनत उसको तैयार कर देगी, आप उसके पीछे नहीं लगना, वो खुद तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। मुकामियों को अपनी फिक्र मेहनत में शामिल रखना, अगर मुकामी को फिक्र मेहनत में शामिल नहीं रखा तो जमात आपकी बनेगी, पर्चे बनेगी, निकलेगी नहीं। मुकामी आपसे कहेंगे मेरे साहब आप लोग आगे बढ़ जाइए, हम लोग मंगल के मशवरे बुध के मशवरे जमात को देख लेंगे, क्योंकि आपने मुकामियों को मुस्तस्ना रखा, साथ रखा, मुकामियों को फिक्र मेहनत में साथ रखा, जमात में। किसी साथी को, किसी जोड़े को, किसी जमात को छोड़ मत देना। जमात बन गई, लेके जाने वाला कोई नहीं है, अपना जोड़ा एक साथ में जोड़ दो, 3 दिन चला कर आ जाओ। जमात बन गई, आपके साथ कोई जोड़ा लेके जाने वाला नहीं है, जमात को ऐसे घर में डाल दो जहाँ पुरानी बहनों जमात को संभाले। जमात बन गई, ऐसा कोई घर भी नहीं है तो अपने करीब के मकान में, जहाँ आपकी मसला जमात ठहरी है, उसके करीब के मकान में बहनों को रखो और आप इस जमात की निगरानी करना, आपके साथ करीब में रहकर काम कर ले। एक दो जोड़े तैयार हुए, उनको छोड़ो मत, अपने साथ जोड़ लो। जितने जोड़े आपके साथ जुड़ेंगे वो आपसे काम सीखेंगे। बहुत अच्छी बात है कि जमातें ऐसे इलाकों में जा रही है तो 20-25 जोड़े चिल्ले में जोड़ो, 2-2 जोड़े लेके चलो 3 दिन के लिए, 7 मसला देंगे, कोई मसला नहीं। आप 5 और 2 जोड़ने की गुंजाइश है, 2 जोड़े जोड़ लो, उनका 3 दिन लगाओ, अगले 2 जोड़े, इस तरह से आप जोड़े जोड़ते रहोगे तो कई जोड़े आपके साथ रहकर के काम सीखेंगे। काम सुनाना अलग चीज है, काम सिखाना अलग चीज है। उनको काम सुना के मत आना, बल्कि काम सिखा कर आना। कर लो कैसे इंशाल्लाह, उससे बहुत दफा होगा। इस तरह से नकल जमात बनाने की आपको पूरी कोशिश करना है। आप वहां जाकर रुक ले लेना, उनसे रुक लेना, क्योंकि आपको जमात से बनानी है, मर्दों की नहीं कि आपको किसी मस्जिद में भेज दिए। आप मकानात के रुक ले लेना ताकि आप जमात रोजाना बनाते जाओ और रवाना करते जाओ। जमात से रवानगी की बात भी करना, वापसी पर कारगुजारी भी लेना। इस तरह से 40-50 जमातें बनाकर आना तो आपको वहां पर खाना खाना भी आपको अच्छा लगेगा। मस्तूरात से मिलने जाओ, हमारी बहनें पूछे आज जमात बनी नहीं बनी, बोले आज जमात नहीं बनी तो हमारे दिल दुखी हो जाए, आज हमको खाना नहीं अच्छा लग रहा है, आज नींद नहीं आ रही है, आज हमारा कारोबार नहीं हुआ। होता है ना घर में ऐसा, कोई माल नहीं बिका, कारोबार नहीं हुआ, कस्टमर नहीं आया, चेक रिटर्न गया, बोले मूड खराब है। क्यों मूड खराब है? दुनिया का नुकसान हुआ, ये इतना बड़ा उम्मत का नुकसान हो गया, हमारा आज मूड अच्छा नहीं। इसके लिए हमको पूरी कोशिश करना है कि जमात में निकले। ये फिक्र वाली बात है, करोगे इंशाल्लाह फिक्र से काम। दूसरी ताकत जमात की, जमात मुकामियों पर जाकर बोझ नहीं बन जाए, अपना बोझ खुद उठाना, मुकामियों पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालना। हमारी सारी जरूरत हमको खुद इंतजाम करना है, किसी जरूरत का इंतजार नहीं करना। स्टेशन पे खड़े बोले सवारी का इंतजार कर रहे हैं, आप ससुराल में नहीं क्योंकि सवारी लेने आएगी आपको, अपनी गाड़ी करो पहुंच जाओ, अपना टैक्सी बस जो भी करना है करके पहुंच जाओ। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। खाने का इंतजार नहीं करना दावत आएगी नहीं, बल्कि खाने का इंतजाम करना है। अगले मकान में जाने से पहले पिछले मकान में खाना बना लो, उस मकान में पहुंचे तो खाना आपके साथ होगा। इसको कहते हैं खुददार जमात। जो जमात खाना बना लेती है उस जमात के असरात अजीब होते हैं। वो जमात आधी तबलीग कर चुकी, जो जमात खाना बनाती है, खाना मस्तूरात बनाएंगी, आप बाजार पहुंचा दोगे। इसीलिए जितना आपका आप बोझ कम डालोगे ना, आपकी कुव्वत बाकी रहेगी। अगर आपने उनका खाना खाया, दावत खाई, तो आपकी दावत में आपकी तशकील हल्की पड़ जाएगी, आप उनके एहसान में दब जाओगे। मोहसिन मुखलिस पर गालिब रहता है, खिलाने वाला मोहसिन है, एहसान कर रहा है, खाने वाला मुखलिस से इखलास से खाया जा रहा है। इखलास से बिरयानी भी अंदर गई, इखलास से कुरमा भी अंदर चला गया। माशाल्लाह कुरमा बहुत अच्छा था, बिरयानी बेहतरीन बनी थी। इंशाल्लाह आप अगले साल चले जाना, इंशाल्लाह अगले महीने चले जाना। आपने हमारी तकलीफ समझी है, हम आपकी तकलीफ समझ सकते। उनका खाएंगे तो उनकी बोली बोलेंगे। फिर मेहरबानी करके कोशिश करो आप खुद खाना बनाओ, यानी आपकी मस्तूरात खाना बनाए, उनको खिलाओ। जब वो आपका खाना खाएंगे आप मोहसिन बन जाओगे, वो मुखले से इंशाल्लाह वो खाते खाते तैयार हो जाएंगे। खिलाओगे कि खा के आओगे? दोनों करके आना, दोनों करके आना। अगर दावत देना तो उससे पहले अपनी दावत कबूल करो। अगर आप समझो कि आपको 120 दावत है, आपके नसीब अच्छे हैं, आपको 120 दावत है,
اب ایک جماعت نے کارگزاری تھی 111 دعوت ماشاءاللہ 111 کیا فگر ہے بولو 111 دعوت کھاتے بولے 9 ٹائم پکایا 111 بار کھایا. بہرحال آپ کے مقدر کی آپ دعوت کھاؤ گے بھی تو لیکن اپنی دعوت قبول کراؤ. جو بھی آپ کو جوڑا سمجھو 120 جوڑوں دعوت دی ان سے آپ کیا کہو گے آپ 3 دن جا کر آ جاؤ آپ کے محلے میں ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے آپ آ جاؤ پھر اپنی دعوت قبول کر لو. اس طرح سے اپنی دعوت قبول کراتے جاؤ ان کی دعوت قبول کرتے جاؤ. کھاتے کھاتے 20-25 جماعت بن جائے گی اور محض کی 30-40 جماعت الگ بن جائے گی. کوئی مشکل نہیں ہے کر لو گے ایسے انشاءاللہ. ہر چیز کا خود انتظام کرو. ڈاکٹر کے پاس جاؤ اپنی دوائی کے پیسے خود کرو. ایسے نہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالا ہے باہر نہیں آ رہا ہے انتظار کر رہا ہے کہ مقامی دے رہا ہے کہ میں دوں مقامی دے رہا کہ میں دوں پیسہ اپنا پیسہ خود دو خرچ کرو. جتنا آپ کا جان مال قربان ہوگا اتنا آپ پر ہدایت کے فیصلے ہوں گے. پیسے بچانے کی فکر نہیں کرنا بلکہ پیسے لگانے کی فکر کرنا. آپ کی مستورات کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھنا ان کو بے یار مددگار نہیں چھوڑ دینا کہ مل گئی تو روزی نہیں ملی تو روزہ. بہنیں ڈائبٹیز والی ہوتی ہے شوگر والی ہوتی ہے ان کو وقت وقت بھوک لگتی رہتی ہے ہر 2 گھنٹے میں ڈائبٹیز والوں کو بھوک لگتی ہے تو بسکٹ ہے سیدھے سادے پھل ہے فرسان ہے کیلے ہے دودھ ہے یہ ساری چیزیں اپنی مستورات کے پاس بیگ میں ہونا چاہیے. جب چاہے وہ اس کو استعمال کر سکتی. مکان میں بہن گھر والی کہیں گی بہن رسوئی سامنے حاضر ہے آپ کو جو چیز آپ لے سکتے ہو. کسی کے رسوئی کو چیز لینا مناسب نہیں ہے برا لگتا ہے. اس کے لیے بہنیں جو ہے اپنا سامان خود رکھے کھائے پیے اپنے سامان میں سے. ان کو سیدھا سادہ سامان دینا بہت زیادہ تعویش کا سامان نہیں دینا. آپ بڑی بڑی چاکلیٹ دے رہے ہو بادام پستے دے رہے ہو اور جو ہے آپ جو ہے ان کو آئس کریم لا کے دے رہے ہو اور جماعت ٹھہری غریبوں کے گھر میں. اب مستورات خود بھی کھائی غریبوں کے بچوں کو بھی کھلائی. جماعت تو 2 دن میں آگے بڑھ گئی. وہ غریب کا بچہ اپنے باپ سے کہے گا امیر صاحب بادام پستے لاتے تھے تم بھی لاتے دو مجھے تم بھی چاکلیٹ اور آئس کریم لا کے دو. بولے گا اتنا تو میں مہینے میں کماتا نہیں ہوں 2 دن میں تو کھا لیا بچہ تو نقصان ہو جائے. ایسے کام نہیں کرنا بلکہ اپنے معیار کو سادہ رکھنا. سنگ چنا کھا لو کیلے کھا لو سیدھی سادی چیزیں کھا لو. کام آسان کر دو تاکہ گھروں کے اندر نقصان نہیں. افریقہ جانے والے جماعت کو بغیر دودھ کی چائے پیتی بغیر دودھ کی چائے پیتی تو کالے لوگ قریب آتے ہیں. اگر دودھ والی چائے پیتی تو بولتے بہت مہنگی ہے بولے مہنگی جماعت ہے ہم نے کام نہیں کر سکتے. کام کو آسان بنانا مشکل نہیں بنانا. کرو گے ایسے انشاءاللہ. ہماری بہنوں سے گزارش ہے گھر کے سامان کا استعمال نہیں کرے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے میرا شیمپو بچ جاوے میرا صابن بچ جاوے میرا واشنگ پاؤڈر بچ جاوے. ہر گھر میں سے تھوڑا تھوڑا استعمال کر رہی ہے ایسے کام نہیں کرتا. اپنا صابن اپنا واشنگ پاؤڈر اپنا شیمپو اپنا تیل اپنی کنگھی اپنا تولیہ ہر چیز اپنی استعمال کرنا. گھر کی چیزوں پر ہاتھ نہیں لگانا. اس سے بہت اچھا اثر پڑتا ہے گھر والوں کو. بولتے اچھی جماعت ہے یہ فری فنڈ والی جماعت نہیں ہے یہ فقیروں کی جماعت نہیں ہے یہ تو ماشاءاللہ خوددار جماعت ہے. اس جماعت کا وقار ہے اس جماعت کے اندر سلیقہ ہے. اس کے اثرات پر تو ایسے کام کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات میری کر لیں گے ایسے. تیسری طاقت جماعت کی جو ہے جماعت آپس میں اجتماعیت کے ساتھ رہنا جوڑ محبت کے ساتھ رہنا. اگر جماعت میں توڑ ہو گیا دل پھٹ گئے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اور شیطان اور باطل پوری کوشش کرتا ہے مسلمانوں کے اندر توڑ پیدا کرتے. اللہ کی طاقت کے بعد جو کوئی طاقت ہے تو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے. کیا فرمایا کہ ایسے جیسے پگھلا ہوا شیشہ آتا نا دیوار میں ایسی دیوار ہے ایک ساتھ جڑے ہوئے. سگے بھائیوں سے زیادہ محبت سگی بہنوں سے زیادہ محبت. ایسی اچھی محبت کے ساتھ جانا اور زیادہ محبت کے ساتھ لوٹنا. لیکن ایسی محبت کے ساتھ نہیں لوٹنا کہ اگلی بار سارے چلے والے ساتھ میں جا رہے ہیں. ہر جماعت میں ایک چلے والی بہن ہو 4 اشرے والی ہو. ایسا نہیں کوئی ایسی محبت ہوگی کہ سارے چلے والے ساتھ میں جا رہے ہیں. ایسا کام نہیں کرنا اس سے کام کا نقصان ہوتا ہے. ایک جماعت میں 2 چلے والی ہو 3 اشرے والی ہو ایک چلے والی 4 اشرے والی ہو کیونکہ جماعتیں زیادہ بنانا ہے نئے لوگوں کو تیار کرنا ہے. اجتماعیت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے ہر ساتھی ہر بہن اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے اپنے آپ کو یعنی ایسا سمجھے کہ میں تو ان کی خادمہ ہوں یہ میری مالک کے لیے میں ان کی خدمت کرنے آئی ہوں ان کی برکت سے اللہ مجھے قبول کر دے. ساتھی کیا سمجھے کہ میں تو اصحاب کہف کے کتے کی طرح ہوں. وہ کتا چلا تھا اللہ نے کتے کو ان کے ساتھ رہنے سے قبول کر لیا. میں اس جماعت کا کتا ہوں ان کے ساتھ رہوں گا اللہ مجھے قبول کر دے. تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا لڑائی نہیں ہوگی. جب ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں نا تو لڑائی ہوتی. تو نے مجھے ایسے کہا تو جانتا میں کون ہوں کیا ہے میں کون ہوں مٹی سے بنا ہوں مٹی میں جاؤں گا. میری کیا حیثیت میری کیا اوقات میرا کیا تعارف میری کیا تعریف. تعریف بھی اللہ کی تعارف بھی اللہ کا. ہمارا کوئی تعارف نہیں ہماری کوئی تعریف نہیں. تعارف کرتے حاجی صاحب ہوں میں چودھری صاحب ہوں میں پٹیل صاحب ہوں میں بلکہ ایک جھٹکا مارے گا ساری پٹیلی نکل جائے گی.
सारी चौधरा पना निकल जाएगा, कवर की मिट्टी में जाएंगे तो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। हमारी कोई तारीफ नहीं, हमारा कोई तारुफ नहीं। कि साथी अपने आप को सबसे कमतर समझे। दूसरा, माफी मांग लो, माफ कर दो। मुझसे गलती होगी मैं फौरन छोटा बन के माफी मांग लूँ कि बहन मुझसे गलती होगी, भाई मुझसे गलती होगी, माफ कर दो। और जो माफ मांग रहा है दूसरे को माफ कर दो। पर मैं माफी मांगने पर माफ नहीं करे तो वो शैतान है। एक साल में इसके अलग मेरा गुलाम मुझे सताता है, मुझे कितनी बार माफ करूँ? अल्लाह ने फरमाया उसको दिन में 70 बार माफ करो। गुलाम को 70 बार माफ करो। हमारे साथी है, हमारी साथ में चलने वाले हमारे साथी है, तो बार बार माफ करना है। हम लोगों को माफ करेंगे, अल्लाह को माफ कर देगा। हम लोगों पर रहम करेंगे, अल्लाह पर रहम करेंगे। इसके लिए हमको चाहिए माफ करने का जज्बा। तीसरी चीज अल्लाह ने 2 आंखें दी है। एक आंख से अपने ऐबों को देखना, अपनी कमियों को, अपनी कोताहियों को देखना। दूसरी आंख से साथियों की बहनों की खूबियों को देखना, उनकी अच्छाई को देखना। हम क्या करते? अपनी अच्छाई देखते, दूसरों के ऐब देखते हैं। इस रास्ते में जो देखोगे वो लेने वाले बनोगे, खींचोगे, खींचता है इंसान। ऐब देखोगे तो ऐब लेने वाले बनोगे, खूबियां देखोगे खूबियां लेने वाले। ऐबों को छुपाना है, ऐबों का तस्करा नहीं करना, तन्हाई में उन ऐबों के लिए दुआ करना अल्लाह से। खूबियों को एक दूसरे की खूबियां ले जाए। बहुत मौलाना लिया था फरमाया करते थे, मेरा रास्ता खूबियों का लेन देन है। मुकामियों की भी खूबियां लेना, अपने साथियों को भी खूबियां लेना, बहनों की खूबियां लेना। खूबियां देखकर हसद नहीं करना, सिफात का, शराइत का हसद नहीं करना। हसद करने वाला महरूम होता है, हसद करने वाला मरदूद होता है, हसद करने वाले की तबीयत खराब है। हसद बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, अल्लाह पाक को नहीं पसंद। हसद करने वाला अल्लाह ताला की तकसीम में एतराज करता है, नुक्स निकालता है। अल्लाह पाक आपने इसको क्यों दिया है? आपको पूछना चाहिए था, मुझसे पूछ लेते देने से पहले। हमारी क्या औकात है? अल्लाह तकसीम करने वाले। हसद करने वाली बहन, फरमाया हसद, एक बहन बहुत अच्छा मुज़ाकरा करती है, बेहतरीन तालीम करती है, बेहतरीन दुआ मांगती है तहज्जुद में, अभी हसद वाली जलती है। क्यों ये अच्छी तालीम करती है? सारी बहन इसके पास क्यों जमती है? अल्लाह पाक इसकी सेहत को बर्बाद कर दो, इसको खराब कर दो, इसको बीमार कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। वो फरिश्ता बदवा लौटाता है, अल्लाह ये बदवा देने वाली को मरदूद कर दे, महरूम कर दे। तो हसद करने वाली बहुत 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 बुरी बीमारी है, अल्लाह हमारी हिफाजत करता है। यहूद में हसद बहुत, इतना हसद था कि वो नबी जी को ऐसा पहचानते थे कुरान में जैसे अपने बेटे को पहचानते। बाप बेटों के पहचानते थे कि ये नबी आखिर जमा नबी है, आखिरी नबी है, पहचानते थे। लेकिन हसद की वजह से उन्होंने ईमान नहीं लाया। हसद की वजह से लोग हक का इनकार कर देते हैं। हसद बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, दाई जो है ना, दाई खैर का होता है। हमारी बहनें एक से खैर का बने, आप खैर का। हाँ, दुआ करो, ओ अल्लाह पाक ये बहन का इतना अच्छा मुज़ाकरा है, इसकी मुज़ाकरे को सारे आलम के लिए कबूल कर लो, उम्मत को नफा हो जाएगा। इसकी तारीफ से उम्मत को नफा हो जाएगा, इसकी तहज्जुद से उम्मत को नफा होगा। बहन को सारे आलम के लिए कबूल कर लो। फरिश्ता दुआ लौटाता है, अल्लाह ये दुआ मांगने वालों को सारे आलम के लिए कबूल कर लो। तो अल्लाह उसको हमारी दुआ से कबूल करेंगे और हमको फरिश्ते की दुआ से कबूल करेंगे। तो सबको कबूल करवा लो, अल्लाह क्या क्या कमी। और कुछ सलाहियत चाहिए, सिफात चाहिए, तो अल्लाह का स्टॉक खत्म हो गया क्या? स्टॉक खत्म हो गया बोले कि स्टॉक खत्म हो गया? नहीं, अल्लाह का स्टॉक बहुत भरा पड़ा है। अल्लाह पाक ने इसको दिया है, अल्लाह पाक इसकी इसकी सलाहियत में बरकत दो, मुझे भी कुछ दे दो। इसके मुजाकरे में बरकत दो, मुझे भी कुछ दे दो। तो उनके लिए बरकत मांगो, अपने लिए मांगो, अल्लाह दे देंगे। और हम ऐसा काम नहीं कर पाते, वो बहन हमसे ज्यादा अच्छा काम करती है तो दुआ से उसका साथ दो। अल्लाह पाक मैं दुआ कर रही हूँ, इसके काम में मेरा भी हिस्सा लगा दो। मैं दुआ से इसकी मदद करूंगी तो मेरा भी हिस्सा लग जाएगा। समझ बात? मैं वैसा काम नहीं कर पा रहा हूँ जैसे वो साथी कर पा रहा है, तो मैं दुआ से उस साथी की मदद करूंगा तो उसकी मेरी दुआ से मेरा भी हिस्सा लग जाएगा उसके काम। तो ये होता है काम करने का। तो मैं मतलब अपने भाइयों का, साथियों का, बहनों का नाम ले लेकर दुआ करेंगे, आपस में जोड़ मोहब्बत बाकी रहेगी। मुकामियों के साथ ही हमारा मामला अच्छा। एक और अहम बात बीच में याद आ गई, हर जमात में एक चिल्ले वाली होती है और 4 अशरे वाले, अक्सर बेशतर। तो चिल्ले वाली बहन समझती है कि हमें मुझे इनको सिखाने भेजा गया है। मैं अमीर साहब की बीवी हूँ, हाँ, बाहर अमीर साहब की चलेंगी, अंदर मेरी चलेंगी। मैं अमीरन हूँ, मैं इनकी टीचर हूँ, मैं इनकी सास हूँ। ये 4 मेरी बहुएं हैं, ये 4 मेरी स्टूडेंट्स हैं। इनको सुधारना, मुझे चिल्ले में सुधारना है। तो सुधारना नहीं है बल्कि उनको अपने साथ लेकर काम सिखाना है। हमारा काम नबूवत का मिजाज का है, हुकूमत का मिजाज नहीं है। अब हुकूमत चलाती है, अंदर हुकूमत चालू हो जाती है। वो खुश होती है कि मेरे पास 4 बहुएं आ गई। अब ऐसा मत कर, वैसा कर, यहाँ मत बैठ, वहां बैठ, ये किताब मत पढ़, वो किताब पढ़, ये जिक्र मत कर, ये जिक्र कर, रोई क्यों, हंसी क्यों, बैठी क्यों, लेटी क्यों। वो एक दिन में लगता है 1 साल गुजर गए, 40 दिन 40 साल के बराबर हो जाएंगे। वो बहनें परेशान हो जाएंगी, इंतजार हो जाएगा, आपस के झगड़े हो जाएंगे, जमात टूट जाएंगी। हाँ, जज्बा अच्छा होना चाहिए लेकिन तरीका भी अच्छा हो। अमल से अमल जिंदा करना, बोलने से चिढ़ पैदा होती, टोकने से चिढ़ पैदा होती। हमारा काम है तरगीब देना, रग़बत दिलाना। अपनी जात से अमल की पाबंदी करना, दूसरों को रग़बत दिलाना, शौक दिलाना। हाँ, अभी बड़ी आपा जो है ना,
इनको ऐसा है कि सारी बहनें इशराक पढ़ ले, सारी बहनें लेटी है, अभी बड़ी आपा जाके इशराक की नीयत बांध ले और अमल पेश करे। अमल पेश करना मुस्तहब है, दिखलावा नहीं है, रियाकारी नहीं है। आप इस नीयत से अमल पेश करो ताकि सब अमल करने वाले बन जावे। हाँ, तो जब वो देखेंगे अरे बड़ी आपा इशराक पढ़ी, चलो चलो उठो इशराक पढ़ लो, वो सारी इशराक पढ़ने लगेंगे। बड़ी आपको कुरान पढ़ी, चलो चलो हम भी कुरान पढ़ लेंगे, हम भी जिक्र कर लेंगे। इस तरह से अमल सबल जिंदा होगा और टोकने से चिड़ पैदा होंगी। तो जो जोड़ा साथ में जोड़ा गया चिल्ले वाला, वो बहुत नरमी से, शफकत से, प्यार से, करीब करके इनको काम सिखावे, तो ये लोग इंशाल्लाह काम सीख लेंगे और आगे जितना काम करेंगे आपके हिस्से में आ जाएंगे। मुकामी बहनों के साथ ही हमारा रवैया अच्छा हो, मुकामी को टोकना नहीं, डांटना नहीं। हमारी बहनों के मुजाकरे में नरमी से मैं रहा, वो सारी खैर से मैं। अगर हमारी बहनें सख्त मुजाकरा करेंगी, डांटेंगी मुजाकरे में, तो बस्ती में, गांव में दावत चलेगी, तो जमात तो आई, बड़ी बड़ी आपाएं आई है, बहुत करंट मारती है, बहुत डांटती है। हाँ, वो गांव वाली, देहात वाली बेचारी घबरा जाएगी, आएंगी नहीं, अगले दिन मजमा कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, बयान खत्म हो गया और दुआ हो गई और बहनें उठती है, मजमे से उठ के चलेगी, अपने कमरे में बैठ गई, कमरा बंद करके अंदर चाय पी रही है, मुकामी से मुलाकात नहीं करी, उनसे मिली जुली नहीं। हाँ, तो उससे भी मजमा कम हो जाता है। आप बैठोगी बयान के बाद मुझे बैठना, उनसे मिलना जुलना, वो आपको अपनी दास्तान सुनाएंगे। हर एक का दिल दुखी है, वो कहेंगे देखो मेरा बच्चा बीमार है, इतने साल से बीमार है, उसको ऐसी बीमारी है, या मेरे शोहर का ऐसा मसला है, आप दुआ करो। अरे देखो हम तो यहाँ तालीम करने आए हैं, हम यहाँ पर मुज़ाकरे करना है, तुम्हारी कहानी सुनने को नहीं आए। जब अपने घर पे जाओ ये सब किसी और को सुनाना, तो आपने उसका दिल तोड़ दिया। तो जब कैसी जमाती है, हमारी बात भी सुनते नहीं है, हमको डांट के भगा दिए, तो करीब कोई नहीं आएगा, उनके दिल टूट जाएंगे। बल्कि हमारा काम है उनकी बात सुनना, उनको तसल्ली देना, उनको राहत दिलाना, उनको कहना आप घर में तालीम करो, आपकी घर की सारी मुसीबत दूर जाएगी, आप जिक्र करो, आप कुरान पढ़ो, आप नमाज पढ़ो, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। उनकी जब हम बात सुनेंगे, तसल्ली देंगे ना, उनका दिल खुश हो जाएगा। आज लोगों को दो चीज चाहिए हमसे, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा खाना पीना पैसा नहीं चाहिए, उनको इज्जत चाहिए, उनको मोहब्बत चाहिए। आप इज्जत दोगे, मोहब्बत दोगे, आपको इज्जत और मोहब्बत रिटर्न में मिलेगी, आपको उससे कई गुना ज्यादा मिलेगी। तो हमारी बहनें, हमारे साथी वहाँ के लोगों को इज्जत दे, मोहब्बत दे, तो काम आसान हो जाएगा। तश्कील आसान कैसे होगी? तश्कील आसान करने के लिए हमारे हम अक्सर कहते हैं अजनबी, वहाँ के लोग अजनबी है, आप उनके लिए अजनबी हो, आपके लिए अजनबी है। आप उनसे एक सुई मांगोगे, अजनबी से सुई मांगोगे, आपको सुई नहीं देगा, क्यों देगा सुई? लेकिन अजनबी का आपने दिल जीत लिया, आपके लिए जान दे देगा। तो वहाँ के लोगों का दिल जीतना, अखलाक से मारना, एहसान से जीतना। हाँ, अखलाक से मारो, नरमी से पेश आओ, मोहब्बत से उनको खिलाओ पिलाओ, अपना दस्तरखान वसी करो, उनको करीब करो। आपने एहसान कर दिया, वो दीवाने हो जाएगा आपकी। बोले क्या जमात आई, क्या मोहब्बत करने वाली जमात है, दूर दूर आएंगे आपसे मुलाकात करने। आप जब वापस आओगे स्टेशन पर छोड़ने, कई जोड़े, 200 जोड़े छोड़ने आते स्टेशन पर, रेलवे वाले परेशान हो जाते, बोले कौन से महापुरुष आए थे कि इनको छोड़ने इतने लोग आ गए। ये मोहब्बत इसको बोले। हाँ, तो ऐसा ऐसा उनके साथ काम करना कि वो लोग यानी बिल्कुल काम से, अपनी जात से नहीं जोड़ना है, जोड़ना तो काम से है, लेकिन ऐसा पेश आना कि वो सारे के सारे खुश। अल्लाह नबी जी से फरमा रहे, नबी जी हमने आपको नरम तबीयत बनाया है, आप बिल्कुल नरम है, तो ये आपके साथ चिपके हुए अगर आप सख्त होते सारे छोड़ के भाग जाओ। हमारी बहनें, हमारे साथी नरमी के साथ, मुकाबले के साथ रहे। हाँ, मुकाबले से मिलजुल कर बैठना। हमारी बहनें एक तरफ दीवार की तरफ लाइन लगा के नहीं बैठ जाए, हम बड़ी आपाए साथ में बैठी 5, आप सब सामने बैठे। हमारे जो बोलते हैं हमारी बात सुनो, वो बेचारी घबरा रही है, बोले बहुत बड़ी बड़ी आपा आई है, मुसाफा करने को भी घबरा रही है, ऐसा नहीं करना। बल्कि मजमे में मिलकर फैल कर बैठ जाना, अलग अलग कोने में बैठना और मजमे में मिलकर बैठना और मुस्कुराना, दोस्ती करना। बोले कितनी अच्छी हंसमुख जमात है, कैसा खिलती हुई जमात है माशाल्लाह, ताकि तश्कीलें भी आसान होगी और मिलकर बैठोगे तो उनकी आपस की जो ना वो तकल्लुफ दूर हो जाएगी, मुनासिबत पैदा हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा है कि बाद खुदा बुजुर्ग थी, किस्सा मुख्तसर, नबी जी का मर्तबा इतना ऊंचा मर्तबा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सहाबा के दरमियान ऐसा बैठते थे, मदीने में नए आने वाले को पूछना पड़ता था मोहम्मद अब्दुल्ला कहाँ बैठे, मोहम्मद अब्दुल्ला कहाँ बैठे, कौन है, ढूंढना पड़ता था, मस्जिद में बैठे थे। साहब ने उसके लगे आपके लिए कुर्सी बना दे, तखत बना दे, आप आराम से बैठो, आपका एक शान है, आप बादशाह के बादशाह। फरमाया नहीं, मैं तो तुम्हारे दरमियान एक आम इंसान की तरह बैठना चाहता हूँ। हमारी बहनें, हमारे साथी उम्मीद के साथ वक्त लगाए, उम्मीद के साथ रहे। मस्जिद में आप हो और मस्जिद में कोई जवान आ गया, टाइट टी शर्ट जीन्स पहन के आया है, अंग्रेजियों के लिबास पर, अब उसको यहूदी का बच्चा दिखता है, कोई ईसाई का बच्चा, ऐसा कोई मस्जिद में आता है क्या? बोलेगा माफ करना हजरत, 10 साल बाद आया था, अभी कभी नहीं आऊंगा। आपने उसको भगा दिया मस्जिद से। उसको करीब करो, नया साथी है। नबी जी तो मस्जिद के अंदर गंदगी कर दिया, इस्तिंजा कर दिया, उसको डांटा नहीं, उसको मारा नहीं,
उसको समझाए भाई ये इबादत की जगह है, गंदगी करने की जगह नहीं है, इतना समझाए प्यार से, वो तो दीवाना हो गया। ऐसा नरमी से पेश करो। आप आराम कर रहे हो, कोई मुलाकात कर रहे हो, हमेशा मुलाकात कर, अरे दिखता नहीं टाइम, हमारा आराम का टाइम है, बाद जाओ, हाँ अभी चले जाओ, हमारे खाने का टाइम है, बाद जाओ, हमारे नौकर सुनी हो तो हम उनको जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। बल्कि उनका एहसान है कि वो आ रहे मुलाकात कर, अपना टाइम दे रहे। हम तो 24 घंटे तैयार रहेंगे, अपना खाना पीना आगे पीछे कर दो, आराम आगे पीछे कर दो, मुलाकात में जाएंगे, खाना बाद में खा लेंगे, आराम बाद में कर लेंगे, लेकिन हम मुकामियों की कदर करेंगे, करोगे इंशाल्लाह। किसी बहनों को या साथी भी वहां के मुकामियों को हकीम नहीं समझना, उनकी हिकारत हमारे दिल में नहीं होती। हाँ, ऐसे गंदे लोग हैं, नापाक लोग हैं, मसाइल मालूम नहीं है, कलमा नमाज आता नहीं है, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ये तो बस ऐसे ही रहेंगे, इनसे कुछ उम्मीद नहीं है। आप अगर उनको हकीम समझोगे, अल्लाह ताला उनको तो हिदायत दे देंगे, लेकिन हमको महरूम कर देंगे। हाँ, अल्लाह पाक है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप जैसी नजर से देखोगे ना, उसके असरात पड़ते। अगर आप हिकारत से देखोगे ना, तो आपकी बात उनके दिल में उतरेगी नहीं, उनके दिल में उतरेगी, उनके कानों तक रहेगी, वो सुनेंगे, आपकी बात चलेगी नहीं वापस। अगर आप हिदायत की नजर से देखोगे, हिदायत की नजर से देखोगे, तो आपकी बात उनके दिलों में उतर जाएगी। तो लोगों को हिदायत की नजर से देखना, हिकारत की नजर से नहीं देखना। हजरत फरमाते तुम किसी को उसका जाहिर देखकर हकीर समझोगे, अल्लाह तुम्हारा बातिन देखकर तुमको दलील कर देंगे। इसलिए हिकारत से बचना बहुत बड़ा गुनाह है। हमारी बहनें मुजाकरा करेंगी, आप मुजाकरा करो, हमारे मुजाकरे पॉजिटिव हो, नेगेटिव मुजाकरे नहीं करना, मनफी मुजाकरे नहीं करना। उम्मत को करने के काम बताओ, नहीं करने के काम नहीं बताना। उम्मत अंधेरे में है, हम भी अंधेरे के मुजाकरे करेंगे तो उम्मत को उजाला कौन बताए? अंधेरा किसी चीज का नाम नहीं है, उजाले के नहीं होने के नाम अंधेरा है, उजाले का अंधेरा चला जाएगा, कमा जाएगी, लापरवाही जाएगी, सुनो तफसीरें आएगी, उसके अलावा उम्मत को धीरे धीरे काम पर लाना है, अमाल पर लाना है। करने की काम बताओ, नहीं करने का नहीं बता रहा। काम करने के बड़ी उसूलों में से है, हम दीन लाने की कोशिश करें, दुरुस्ती लाने की कोशिश नहीं करें। दीन आएगा, दुरुस्ती आ जाएगी। दुरुस्ती नहीं है, लोगों को दुरुस्त करने के चक्कर में ना, हाँ दीन लाना है, दुरुस्ती लाना। इस रास्ते में स्वालेह बन के चलना है, मुस्लिम नहीं बनना। स्वालेह वो होता है जो अपनी इस्लाह चाहता है, मुस्लिम वो होता है जो दूसरों की इस्लाह चाहता है। अगर मुस्लिम बनेंगे, दूसरों की इस्लाह की फिक्र में रखेंगे, तो जमात में तोड़ पैदा हो जाएगा और हमारी इस्लाह रह जाएगी। हाँ, दूसरों की इस्लाह करने वाले की इस्लाह रह जाती है, उसकी वजह से जमात में तोड़ हो जाता है। स्वाले बनेंगे, हम अपनी इस्लाह की नीयत से चलते रहेंगे, अल्लाह हमारी इस्लाह कर देंगे, हमको लोगों की इस्लाह का जरिया बना देंगे। अल्लाह हमारी इस्लाह करेंगे और स्वाले को लोगों की इस्लाह का जरिया बनाते हैं। तो स्वाले बन के चलना, मुस्लिम नहीं बनना। इस तरह जोड़ मोहब्बत से काम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, चौथी ताकत जमात की दुआओं की ताकत, दुआ वाली जमात की ताकत और जमात है। जमात जो है ना, दुआओं का एहतमाम करे। हर नबी को दावत की मेहनत करी, दुआ दुआ का हथियार मिला। दावत और दुआ का जोड़, बगैर दावत की दुआ अधूरी है, और बगैर, भाई आप लोग बातें क्यों कर रहे हैं? बगैर दावत की दुआ अधूरी है, और बगैर दुआ की दावत अधूरी है। दावत वाले दुआ वाले बने, दुआ वाले दावत वाले बने। दिन की मेहनत दावत है, रात की मेहनत दुआ है। बंदों की खुशामद करना दावत है, अल्लाह की खुशामद करना दुआ है। तो अल्लाह से मांगने वाले बने, अल्लाह के मांगने बगैर तो काम होगा नहीं। हाँ, दिन की मेहनत हमारे मौलाना फरमाते हैं, दिन की मेहनत चटान बराबर, रात की मेहनत मनो बराबर करना है, क्योंकि कुलूबों के मालिक अल्लाह है, दिलों के फेरने वाले अल्लाह है, जमातें बनाने वाले अल्लाह है। तश्कील अल्लाह करेंगे, हम क्या करेंगे? तो रात को तश्कील का पर्चा लेकर बैठो अल्लाह के सामने, और एक एक का नाम पढ़ते जाओ, एक एक को कबूल कराते जाओ, देखो जमातें बन जाएंगी। तहज्जुद से जमातें बनती है। हमारी दिन की मेहनत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी नजर हमारी मेहनत पर है, हमारी नजर अल्लाह की जात पर है। रात की मेहनत ज्यादा करेंगे, अल्लाह की जात पर नजर रखोगे, अल्लाह काम कर देंगे। सारे साथी जो है तहज्जुद का एहतमाम करे, बहन तहज्जुद का एहतमाम करे। हो सके तो सुबह सादिक से 1.5 घंटा पहले उठो, 1.5 घंटा पहले उठना है। आधा घंटा दिन को सुकून से नमाज पढ़ो, आधा घंटा दुआएं में लगाओ, आधा घंटा कुरान पाक की तिलावत करना। सुबह सादिक से पहले कुरान पढ़ने से अल्लाह को तेजी से हासिल होता है। अल्लाह का नबी जी से फरमा रहे, हम आपके बहुत करीब होते हैं जब आप तहज्जुद पढ़ते हो और जब आप गश्त करते हो। गश्तों के मौके पर और तहज्जुद के मौके पर अल्लाह बंदे के बहुत करीब होते हैं। ये 3 काम आपने कर लिए, नमाज और दुआ और कुरान। फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान में आपको तस्बीहात पूरी कर लो। अब ये आपने दावत का पेट्रोल लिया, फ्यूल ले लिया। जो तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह उनके दिलों में दावत का इल्का करते हैं, दावत का इल्हाम करते हैं। आप निकलोगे बस्तियों में, आपके जबान पर फरिश्ते बोलेंगे, आप ऐसी बात अल्लाह बुलवाएंगे, आप सोचेंगे कहाँ से आ रही है बात, कहाँ से बोल रही, ऐसी अजीब अजीब बात अल्लाह बुलवाएंगे। और लोगों को अल्लाह तैयार करते हैं जिनके नाम नहीं है, वो भी अपना सामान लेके मस्जिद में आ जाएंगे। आपको यकीन बन जाएगा कि जमात अल्लाह बना रहे हैं और तहज्जुद की बरकत से बन रही है। तो पढ़ोगे तहज्जुद इंशाअल्लाह।
नबियों पर तारीफ फर्ज थी, सहाबा पर 1 साल तक फर्ज थी, जब वो आदमी हो गए तो फर्जियत हटा ली गई। जो जमात ताहज्जुद नहीं पढ़ती है वो कहती है कि अल्लाह पाक हमको अपनी जरूरत नहीं है, अपना काम खुद कर लेंगे। आपको अल्लाह के बगैर होगा नहीं। हाँ, अल्लाह पाक के खजाने में सब कुछ है, अल्लाह के खजाने में सब कुछ है, एक चीज अल्लाह के पास नहीं है, हमारे पास है। अल्लाह पाक रोते नहीं है, अल्लाह पाक मांगते नहीं है। हम जितना रोते और मांगते जितना हम रोते और मांगेंगे ना, हाँ, आपको अगर आराम करना बिस्तर पे चले आराम कर लो, यहाँ सो जाओगे तो हमको भी नींद आ जाएगी। हाँ, डाक्टर को थोड़ा सा तो कुर्बानी दे दो, सफर करके थक आ जाते तो कुर्बानी दे दो। हाँ, तो सारा मामला डिस्टर्ब हो जाता है। तो अल्लाह पाक रोते नहीं, अल्लाह पाक मांगते नहीं। हम जितना रोएंगे मांगेंगे उतना अल्लाह हंसेंगे, उतना अल्लाह मुस्कुराते, फिर अल्लाह पाक हंसते हंसते काम कर देंगे। तारीफ को अल्लाह ऐलान करवाते, कोई मांगने वाला, कोई सवाल करने वाला, कोई मुख्तलिफ चाहने वाला, कोई दुआ करने वाला, उसकी वो कबूल हो जाती है। तो उस वक्त हम उठ जाए और जल्दी जल्दी हम अमाल करें, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। मुल्कों में आज से 70-80 साल पहले मुल्कों में जमातें भी देवातियों की, देहातियों की, ये बेचारे अनपढ़ थे, किताब पढ़ना जानते नहीं थे, मुज़ाकरा करने नहीं जानते थे, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी कुछ नहीं जानते। लोगों ने हजरत जी से कहा कि आप ये जमातें अमेरिका में, यूरोप में भेज रहे हो, मुल्कों में भेज रहे, क्या काम करेंगी? इनको तो किताब पढ़ना भी नहीं आती। हजरत ने फरमाया, मैं जानता हूँ इनको कुछ नहीं आता है, लेकिन इनको अल्लाह के सामने रोना आता है, इससे रोना सीखे, उनसे काम सीखे। रोना के उसको काम आ गया, तो घंटों रोते थे और अल्लाह काम कर देते थे। अब क्या, अभी हम घंटों सोते हैं, रोते नहीं, रात को देर तक जागते हैं। वो छोटा दोस्त लेके चला, सबके पास वो दोस्त है कि नहीं, वो तो लेके जाना फर्ज है ना हमारे साथ में। हमारा पहला कलमा भी वो है और आखिरी कलमा वो है। सोते उसका साथ, उसके भी उसके साथ सोता है तो उसको लेकर सोता है, उठता है तो पहले उसको ढूंढता है कहाँ गया मेरा दोस्त। हाँ, तो ये चीजें साथ में रहेगी तो कहाँ से सोना होगा, कहाँ से रोना होगा। न जल्दी सोएंगे, न जल्दी उठेंगे। बहुत नुकसान हुआ है इससे, जमातों का बहुत नुकसान हुआ। पूरी फिक्र हमारे घरों पर है, बच्चों में, कारोबार में, हर वक्त उसी में लग रहे हैं। कितना नुकसान है, इसके बचने की कोशिश करना करेंगे इंशाल्लाह। रातों को मांगेंगे अल्लाह से इंशाल्लाह, खूब रोने की आदत डालो। 5वीं ताकत जमात की है, जमात के अमाल। जमात अपने अमाल पूरे करे, अमाल पूरे करे। समझो वो तरबियत की जो शरायत है, तरबियत की शरायत में सोहबत से होना चाहिए, दूसरा माहौल से होना चाहिए। जैसे मस्जिद का माहौल है, नेक लोगों की सोहबत है, मुद्दत पूरी हो, वक्त पूरा करो, अधूरा मत लगाओ। चिल्ला है तो 40 दिन पूरे लगाओ। हमारे आमाल का चिल्ला है, दिनों का चिल्ला नहीं है। हमारे 40 गश्त, हमारी 80 तारीख, हमारी 40 तारीख पूरी होनी चाहिए। 200 नमाजें उस इलाके में तकबीरुल्लाह के साथ हो, हमारी मस्जिद में, वहां पर जमात के साथ। मुल्कों में जा रहे तो 300 नमाजें, क्योंकि 60 दिन है तो 300 नमाज। इस तरह से हमारे आमाल की मुद्दत पूरी होना शर्त है तरबियत के लिए। अगर मुद्दत पूरी हुई तो तरबियत नहीं होगी, वक्त पूरा नहीं हुआ तो आमाल पूरे नहीं होंगे, आमाल पूरे नहीं होगा तो नतीजा नहीं निकलेगा। अधूरा काम किसी को पसंद नहीं आता। समझ भाई बात। आपने कुर्ता सिलवाया रमजान के महीने में कि ईद के दिन पहनूंगा इंशाल्लाह, टेलर के पास काम ज्यादा था, उसने एक अस्तीन नहीं लगाई, कुर्ता बन गया, एक अस्तीन को बगैर दे दिया, बोला आप कल पहन लेना, बाद में अस्तीन लगा दूंगा, पहन लेंगे ना इंशाल्लाह। बोलो ना भाई, अधूरा कुर्ता है, बगैर अस्तीन के कैसे पहनेंगे? हमने तो चिल्ले की अस्तीन काट दी, किसने जेब काट दिया, किसने क्या काट दिया। तो ऐसे चिल्ले नहीं लगाओ कटिंग वाला, बल्कि पूरा चिल्ला झुकता चलना और मेहनत पूरी करना, मेहनत का अमल पूरी। तो 4 चीजें तरबियत के लिए, मेहनत, माहौल, सोहबत और मुद्दत। सारी जमा वक्त पूरा लगाएगी ना इंशाल्लाह। तो बोलते जिम्मेदारों ने टिकट बना दी, अरे टिकट बना दी तो उनको गिनती नहीं आती, दिनों की गिनती नहीं आती जिम्मेदारों की। हाँ, तुम्हारे 2 महीने की जमात है, 55 दिन लगा के आती है, 2 महीने के 55 दिन का होता है, इतना भी नहीं होता, 60 दिन का होता है 2 महीना, 40 दिन 38 दिन का होता है, कि 40 दिन का होता है। हम 2 दिन कम लगा लेते हैं, 5 दिन कम लगाते हैं। हमने 2000 दिन का नुकसान किया, 5000 दिन का नुकसान किया। कयामत के मैदान में एक सुभान अल्लाह की नेकी, उसकी कीमत पूरी दुनिया से ज्यादा होगी। अब 2 दिन में कितना काम हो जाता है, 5 दिन में कितना काम हो जाता है, कितनी नेकी हो जाती है, सोचो तो सही। अल्लाह के रास्ते का एक दिन उसके अलावा के 1000 दिनों से बेहतर है। तो 2 दिन में आपने 2000 दिन का नुकसान किया। तो ऐसा दिन मत कम करो, वक्त पूरा लगाते हो। बल्कि मैं तो अर्ज करता हूँ, मैंने बताया ना, उम्मत ऐसे हालात में है, उनको ऐसा बेहद मददगार छोड़कर मत आओ, अपना वक्त बढ़ाओ। चिल्ले को 2 महीना कर दो, 20 दिन बढ़ा दो, 1 महीना बढ़ा दो, एक चिल्ला बढ़ा दो, जितनी हिम्मत हो उतनी बढ़ा दो, 10 दिन बढ़ा दो, कुछ वक्त बढ़ा के आओ, कुछ काम करके आओ। आप अगर 10-20 दिन बढ़ाओगे तो आपके चिल्ले में इतना काम नहीं होगा जो 20 दिन में हो जाएगा, समझे? वक्त कुर्बानी से बढ़ जाए। चिल्ला आपने लगाया, क्या कुर्बानी, आपके बस में ना चिल्ला लगा लिया, अब चिल्ले के बाद जो वक्त लगा वो आपकी बस में नहीं है, वो कुर्बानी बढ़।
وہ मुजाहिदा बनता है। जो हमारे बस के बाहर है, हम 20 किलो उठा सकते हैं, आपने 20 किलो उठाया, कुर्बानी है। आप 30 किलो उठाने की कोशिश करो, वो कुर्बानी है। और मैं मेरी बात, तो अपने वक्त को बढ़ाने की जमाते कोशिश करें, करेंगे इंशाल्लाह। तो मेहनत में क्या है, सबसे पहले दावत, सबसे पहले काम क्या, दावत में हमारा ज्यादा वक्त लगे। हमारी बहनों का, आप हजरात का दावत में ज्यादा वक्त लगाना, इनफरादी दावत, इज्तिमाई दावत। बहनें दावत देने को शर्माती, आप तो पुराने साथी दावत देते रहते हो, बहनें घबराती है, शर्माती है, इनफरादी इबादत कर लेंगे लेकिन इनफरादी दावत नहीं देती। एक ही को लेकर बैठे बैठ, दावत किसको कहते हैं कि हमारे दिल दूसरों के दिल फिर जावे, मखलूक से खालिक की तरफ, चीजों और मान से हमारे मोहम्मद रसूल की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ। अल्लाह के मुज़ाकरे करना दावत है, आमाल के मुज़ाकरे करना दावत है, और आखिरत के मुज़ाकरे करना दावत है। इतनी आसान है दावत, दीन आसान, दीन की मेहनत आसान। तो पहले दावत है, इसके बाद तश्कील करें। तो आप भी खूब दावत है, हमारी बहनें भी खूब दावत है। दूसरा काम है तालीम, सुबह शाम की तालीम एहतिमाम से करना। सुबह की तालीम 2 घंटे की, शाम की तालीम 1.5 घंटे की। तालीम क्यों की जाती है, इंफरादी तालीम करना, इज्तिमाई तालीम करना। तालीम इसलिए करना है अल्लाह के वादों का यकीन दिल में पैदा हो, अल्लाह के वादों का यकीन दिल में पैदा हो। अल्लाह के वादों का यकीन हर हाल में हुक्मों पर जमाएगा, अल्लाह के खजाने से लेने वाला बनाएगा। वादों का यकीन हुक्मों पर जमाएगा, अल्लाह के खजाने से लेने वाला बनाएगा। अल्लाह की जात पर तवक्कुल आएगा, अल्लाह के वादों पर तवक्कुल आएगा, अल्लाह के खजानों पर तवक्कुल आएगा। तवक्कुल किस वक्त पैदा होगी कि अल्लाह की कुदरत कामिल है, कुदरत वादों के साथ है, वादे हुक्मों के साथ है। हमारे जिम्मे हुक्म को पूरा करना, अल्लाह ताला हुक्म को कबूल करेंगे, कुदरत से वादा पूरा करेंगे, वादे पूरे होंगे तालीम के जरिए से, करोगे इंशाअल्लाह। दूसरा क्या पैदा होगा, दूसरी चीज जो आएगी दिलों में, अल्लाह की वईदों का खौफ, अल्लाह की नाराजगी का खौफ, अल्लाह के अजाब का खौफ दिलों में आएगा। भी नाराजगी का खौफ, अजाब का खौफ हमको गुनाहों से रोकेगा, नाफरमानी से बचाएगा, इससे तकवे की सिफत आएगी। तालीम से तवक्कुल आएगा, तकवा भी आएगा। ये बड़ी बड़ी शाखें ईमान। तीसरा काम क्या होगा, तालीम से एहतिसाब पैदा होगा, अमल पर मिलने वाले अजर का यकीन आएगा। अमल करते वक्त अजर का यकीन भी हो, अजर का इस्तेदार भी हो, अजर के ध्यान के साथ अमल करो। हजरत अक्सर फरमाते ना, हाँ देखो शादी माशा कितना अच्छे से सो गए, देखो सीखो इससे, जागो भाई, सो मत, आप आराम से टेक लगा के लेट जाओ ना, आधे की लेट पूरी लेट जाओ। क्या फरमाते, जुमा का गुस्ल बालों की जड़ों से, नाखून के नीचे से गुनाह को मिटा देते। हम गुस्ल तो करते हैं, लेकिन उस वक्त इसका ध्यान होना चाहिए और इसका यकीन होना चाहिए कि मैं जुमा का गुस्ल ले रहा हूँ, मेरे गुनाह अल्लाह ने मिटा दिए बालों की जड़ों से, नाखून के नीचे से। इसको कहते हैं एहतिसाब। अब जुमा के गुस्ल के बाद हम खुश होना चाहिए कि मेरे सारे गुनाह मिट गए, समझ में आई बात। तो इस तरह हर अमल के वक्त उसका एहतिसाब किया जाएगा तालीम से। और चौथी चीज, नबी जी की खबरों का यकीन तालीम से आएगा, और नजर का यकीन हटेगा, नजर का इकरार होगा, खबर का इकरार होगा, तालीम से आएगी। चार चीजें, तकवा, तवक्कुल, एहतिसाब और नबी जी की खबरों का यकीन तालीम से आएगा। सुबह शाम की तालीम एहतिमाम से करना है। तीसरी चीज, इबादत में अपने आप को लगाना। बहनें भी, साथी भी खुद इबादत का एहतिमाम करे। रोजाना की 9 नमाजें पढ़ना है, 5 फराइज है, उसके बाद सुन्नत और नफिल भी पढ़ना। ऐसे कि सफर में तो हम सिर्फ फर्ज पढ़ेंगे नहीं, सुन्नत भी पढ़ेंगे, नफिल भी पढ़ेंगे। अभी कसर नमाज का मसला आप मुफ्ती साहब से या मौलवी साहब से पूछ लेना कि नमाज कसर रहेगी या पूरी रहेगी। इसके बारे में मुझे भी इल्म ज्यादा नहीं है, मैंने भी पूछते भूल गया, मुफ्ती याकूब साहब से किससे पूछ लेना कि आप तो मस्जिदों में नमाज पढ़ोगे तो पूरी पढ़ोगे, लेकिन मसला कसर पड़ेगी या पूरी पड़ेगी, मौलवी सरदार साहब से, मुफ्ती साहब से पूछ लेना। लेकिन उसके साथ साथ ताजुद, इशराक, चाश और इन नमाजों का एहतिमाम करना। सलातुल तौबा है, सलातुल हाजात है, सलातुल शुक्रान है, ये भी पढ़ लिया तो रोजाना 2 रकात। सलात तस्बीह हो सके तो रोज पढ़ो, इतनी इस्तिताअत नहीं तो कम से कम जुमा के दिन सलात तस्बीह पढ़ोगे इंशाअल्लाह। नमाजों को ध्यान लगा पढ़ना, जी लगा पढ़ना, अच्छी नमाज पढ़ना, लंबी नमाज पढ़ना, लंबे रुकू, लंबे सिजदे, लंबे कयाम, नमाज की अच्छी लगे। नमाज में ध्यान लगाने के लिए क्या करना होगा, सुबह शाम की तस्बीहात एहतिमाम से, किबला रुख बैठ करके, बावजू नमाज की तरतीब पर तस्बीह पढ़ना। नमाज में बातचीत नहीं करते, तस्बीह बातचीत नहीं करेंगे, नमाज में आवाज नहीं देखते, तस्बीह में आवाज नहीं देखेंगे। ध्यान से तस्बीह पढ़ेंगे तो अल्लाह का ध्यान पैदा होगा। अल्लाह को याद करना है, अल्लाह को याद रखने के लिए अल्लाह के हुक्मों में अल्लाह के ध्यान के साथ मशगूल होना। अल्लाह मेरे सामने मुझे देख रहे हैं, ये तस्बीह से आएगा। अल्लाह मेरे करीब है, अल्लाह मेरे पास है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरी शहर से ज्यादा करीब है, इतना करीब अल्लाह है, इसका इस्तेदार आएगा। ये तस्बीहात से आएगा। फिर तस्बीहात का एहतमाम करना सुबह। उसके साथ साथ रोजाना कुरान पाक की तिलावत कोशिश करो, चिल्ले में एक कुरान मुकम्मल हो जाए। रोजाना एक पारा पढ़ना है, नहीं तो कम से कम पौना पारा तो पढ़ो, चिल्ले में कुरान हो जाएगा। एक कुरान मुकम्मल करोगे 7 लाख कुरान का अजर मिल जाएगा। उपवास के रोजाना के 30 पारे, अवाम के लिए 1 पारा है।
बहनें भी कोशिश करें, साथी भी कोशिश करें कुरान मुकम्मल करें। जिनको कुरान नहीं आता है वो कुरान पढ़ना सीखना पढ़ना जो है ना खुद सीखना शुरू कर दो नूरानी कायदे से। रोजाना आधा घंटा फारिग करो, कुरान की सीख ले। बहनें जो जानने वाली बहनों सिखाओ बहनों को, साथी तो साथी को सिखाओ। इस तरह से कुरान को वक्त देना, रोजाना आधा घंटा कम से कम कुरान में लगाना। और मसनून दुआ का एहतमाम करना, रोजाना बहनें एक एक दुआ याद कर ले। 40 दिन में 40 दुआ याद करके आवे। मसनून दुआ ने कबूलियत का रास्ता देखा है। मसनून दुआ जल्दी कबूल होती है। दुआ का एहतमाम, सुबह शाम की दुआएं, हिफाजत की दुआएं, हादसा से बचने की दुआएं, सवारी की दुआएं, सफर की दुआएं, बहुत सारी जो बेशुमार दुआएं। और एक एक दुआ के मायने मतलब जबरदस्त। रसूल की मुबारक जुबान से निकली दुआ है, बेहतरीन दुआ, तो याद करेंगे इंशाअल्लाह। और रोजाना जैसे मैंने किया आधा घंटा दुआ में लगाना, ये इबादत के अमाल है। इसके साथ साथ खिदमत भी करना है। खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से तवाज़ु आती है, तकब्बुर टूटता है। इस रास्ते में लगकर इंसान को अपनी हैसियत का एहसास जाता है, उसको पता चलता है अच्छा मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतनी बड़ी आपा बन गई हूँ, मेरे मुजाकरे लोग मुसाफा कर रहे, मुझे दुआओं के लिए कह रहे, मेरे आगे पीछे लोग हो रहे, फला मरकज से बात कर दिया, फला जगह हवा में उड़ने लगता है। अब उसको नीचे लाना पड़ता है, वरना उड़ते उड़ते कहाँ चला जाएगा बेचारा। इसके लिए इबादत का तकब्बुर, दावत का तकब्बुर, इल्म का तकब्बुर बहुत खतरनाक होता है। एक गुनहगार, एक बदकार बदकारी से तौबा कर लेगा, लेकिन एक आबिद इबादत के तकब्बुर से तौबा नहीं करेगा। एक दाई दावत के तकब्बुर से तौबा नहीं करेगा। एक आलिम इल्म के तकब्बुर से तौबा नहीं करेगा। शैतान को किस चीज से बनाया? इब्लीस को मुअल्लिमुल मलाइका, टीचर ऑफ मलाइका, मलाइका को मारिफत का सबक सिखाता था। अल्लाह को कैसा पहचानता था, उसको अल्लाह की कैसी मारिफत आती थी। हाँ, आसमान में कोई जगह नहीं थी उसने सिजदा नहीं किया हो, इतना बड़ा आबिद था, इतना बड़ा आलिम था, लेकिन हैसियत का एहसास जागा उसको, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतनी बड़ी शख्सियत हूँ, मैं आदम को सिजदा करूँ। तो अल्लाह का हुक्म उसकी हैसियत के मुकाबले में, उसकी हैसियत मजरू हो रही थी, उस हुक्म का इनकार कर दिया हैसियत के मुकाबले में, हमेशा के लिए लानती हो गया। इसलिए हैसियत के एहसास नीचे लाने के लिए क्या करना होगा? बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन बैतुल खुला साफ करते थे, मस्जिदों की मरकजों की बैतुल खुला साफ करते थे, अपने आप को नीचे ला के देख तू क्या है, तू कोई चीज नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है, तू तो एक बैतुल खुला साफ करने वाला है। हमारे साथी भी, हमारी बहनें भी मस्जिदों में, बहनें घरों में टॉयलेट साफ करे, झाड़ू दे दे, पोछा मार ले, सारे काम कर ले, इससे तवाज़ु आएगा, हमारी ईमान अमल बच जाएंगे, वरना आदमी कहीं का नहीं रहेगा। इससे बचना, खिदमत से अल्लाह रसूलुल्लाह से इतनी बड़ी शख्सियत है, जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाकर खाना पकाते, साहब इसके अल्लाह आप रहने दो, हम कर लेंगे, आप आराम करो। अल्लाह ने फरमाया मैं भी अजर का इतना मोहताज हूँ जितना तुम मोहताज। नबी की खिदमत करेंगे, हमारी कैसी? हमारे फरमाते हैं हमारी बहनों को चाहिए उनके घर के बच्चों के कपड़े भी धोके दे दे, घर वालों को ऐसा फारिग कर दे। कुछ जमात इतना अच्छा काम करती ना, साफ सफाई कर देती, पूरे घर को चमका देती है, खाना बना लेती है, जल्दी जल्दी दस्तर बिछा लिए, प्लेटें उठा लिए, बर्तन धो लिए, कपड़े धो डाले, सब काम कर दिए। वो घर वाली बोलती क्या जमात है, मेरे को तो भेजे भी। वो घर वाली सारे आवाज में जुड़ रही है, जमात सारे काम कर दी। घर वाली बोलते अपने शौहर से ये 2 दिन जमात आई थी, मेरे सारे काम आसान हो, 5 मेरी खादिमा है, 5 खादिमा आ गई थी, पूरा मेरा घर चमका दिए। रोजाना जमात लो, क्या बोली, रोजाना तुम जमात लो, मेरा काम आसान हो। और कुछ जमाने माशाल्लाह ऐसे तो नहीं दुल्हने गई थी, 5 दुल्हन गई थी, जगह पे बैठे थी और देखते थे, वो भी सारे काम करती है, उनको पानी का गिलास भी लाके दे रही है, सारा झाड़ू सब समय वो करती है। 2 दिन में उसकी जान खत्म, अपने तौर से कहती है मेरी तो जान निकल गई, अल्लाह के वास्ते साल में जमात दे रहे हैं, कोई काम नहीं। तो हमारी पहले जैसे घर में काम करती है जैसे वहां काम करेंगे, क्या मुश्किल है काम करने का, क्या मुश्किल है, जैसे घर में काम करती है तो वहां भी काम करें। तो खिदमत से सारी बहनें लगे, सारे साथी भी लगे, खाना तो मुस्तरात बनाएंगी, आप हजरात मस्जिद में लाके खाना खा लें। खाना वहां नहीं खाना जहाँ पर मुस्तरात ठहरी है, वहाँ खाना भी नहीं खाना, वहाँ चाय भी नहीं पीना, वरना उनका काम बढ़ जाएगा, उनको परेशानी बढ़ जाएगी। बाजार आप लाओगे, खाना मुस्तरात बनाएंगी और आप खाना मस्जिद में लाके खाना, सालन बनवा लो उनसे, रोटी आप लेकर आ जाओ, सालन बनाए चावल लेकर आप आ जाओ, इस तरह से काम आसान कर दो। खाने पीने में, पकाने में ज्यादा लवाजिमात पे नहीं पड़ना, आज हमको फला चीज खानी, बटर चिकन खाना है, आज ये खाना है, आज वो खाना है, आज ये खाना है, ये सब घर पे नखरे करते रहो। सीधा साधा खाना बन जावे, जल्दी से खा लो, जल्दी से खत्म हो जाए। आसानियां पैदा करो, गाँव में मुश्किल पैदा नहीं करना, कर लेंगे इंशाल्लाह। पहले मकान की साफ सफाई का ख्याल रखे, जिस कमरे में आपको इजाजत मिली आराम करने की उसी कमरे में रहो, एक कमरे में अमाल करो, पूरे घर में चलना फिरना नहीं,
बुरके को तरीके से, कपड़े बैग हमारे तरीके से ढके हुए हो, एकदम करीने से रखना। खास करके मुकामी औरतें आती है जमात का कमरा देखने कि जमात कैसी है, सामान देख के पता चलता है जमात कैसी है। जमात बिखरा पड़ा है, बुरके फेंके हुए पड़े हैं, कपड़े ऐसे पड़े हैं, बोले जमात में ढंग नहीं है, सलीका नहीं है, करीना नहीं है, वकार नहीं है, बहुत नासमझ जमात है। दावत हमारा हर मन दावत, जैसे मस्जिद में हजरत सामान कैसे रखते हैं, ऐसे ही हमारी बहनें भी घरों के अंदर सामान ऐसा रखेंगी, बिल्कुल करीने से, एकदम सलीके से। ये भी एक दावत करेंगे इंशाल्लाह, ऐसे खिदमत करेंगे ना सब साथी। हाँ, ये होगी सारे अमल करने का, आपको पता है मुझे। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या मामला रहेंगे, आप सफर करोगे, लंबा सफर है ट्रेन का, हम सफर से मुनासिबत पैदा कर लेना, उसके बाद पर्दा लगा देना, बहनें पर्दे में रहेगी, आप बाहर रहोगे, पर्दे में बहनें अपने इंफरादी अमल, पूरे सफर में कोई इस्तेमाल अमल नहीं करना है। इंफरादी किताब पढ़ो, इंफरादी तिलावत करो, जिक्र करो, दुआ याद करो, दुआएं पढ़ो, जो करना करो, लेकिन इस्तेमाल अमल नहीं करना, ठीक है। दो दो करके आप लोग नमाज पढ़ सकते हो, खड़े रहकर सारी नमाजें पढ़ेंगे, मस्तूरात भी खड़े रहकर पढ़ेगी, मर्द भी खड़े रहकर पढ़ेंगे। जो माजूरीन है पहले से बैठकर पढ़ते उनकी बात अलग है, बाकी खड़े रहकर कयाम के साथ नमाज पढ़ना है। सफर में तो कसर नमाज पढ़ेंगे, बिना रुक बता दे रहा अपनी मस्तूरात को। किसी हम सफर के कोई खाना किसी को ऑफर नहीं करना, किसी का खाना खाना नहीं। आजकल के हालात ऐसे करना, ऐसी चीजें मत करना, वरना परेशान हो जाओगे। हाँ, और सफर के अंदर जब आप मंजिल पर पहुंच जाओ, सारा काम उतार लिए, मसलात को उतार लिए, मुनासिब लगे इलाके में कोई मसला है तो आप स्टेशन पर दुआ कर सकते हो, वरना उस बस्ती में पहुंचकर दुआ करना। जब भी बहनें दुआ में शामिल रहेगी, अगर मर्दों के सामने दुआ कर रही है तो हाथ नहीं उठाएगी और आमीन दिल पे कहेगी। अगर पर्दे के पीछे दुआ कर रही है तो हाथ उठा सकती है, लेकिन आमीन की आवाज नहीं आना चाहिए। आप हजरात हर जगह पहले मकान देख लेना, मकान देखने में से आपको देखना है कि हर जगह पर्दे का एहतमाम हो, बेपर्दे नहीं होती। अगर बेपर्दगी है तो पर्दा लगाने का ऑर्डर पास नहीं करना, आपके पास पर्दा होना चाहिए। आपके पास चादरें हो, रस्सी हो, क्लिप हो, आप पर्दा बांध सको। आपके पास माइक सेट अपना खुद का मुकम्मल हो, आपके पास ताम का पूरा सेट होना चाहिए। पकाने वाला आम का सेट लेके जाना, आवाज करने वाला नहीं, आवाज आ रही, बर्तन की आवाज थोड़ी जरा फेंक के लगे हम बर्तन लाए, खोल के देखा तो अंदर दस्तरखान भी नहीं है, प्लेटें भी नहीं है, चम्मच भी नहीं है, तो क्या काम का मुकम्मल सेट लेके जाना, किताबों का मुकम्मल सेट, माइक का मुकम्मल सेट, पर्दों का मुकम्मल तैयारी से जाना, ठीक है। मकान मालिक से एक दिन पहले, हर जगह एक दिन पहले मकान देखना, ताकि अहले मकान से मुलाकात हो जाए, उसकी तस्वीर हो जाए। हाँ, एक आदमी आपके साथ रहेगा मस्जिद में, उसको कह देना भाई आपको हमारे साथ मस्जिद में रहना है 2 दिन तक, हमारी जमात आपके घर में रहेगी, आप हमारे साथ अल्लाह के घर में रहोगे। वो कहेगा मेरा मकान बहुत बड़ा है, 8-10 कमरे हैं, बड़ी हवेली है। हाँ, तो 2-4 कमरे में लोग 4 आदमी है, अलग कमरे में रह जाएंगे, मसला आपके अलग कमरे में रह जाएगी। आप देखना मकान बड़ा है, लेकिन अगर एक टॉयलेट बाथरूम है और एक दरवाजा दाखिल होने का, तो एक मकान में उसमें मर्द नहीं ठहर सकते। अगर 2 टॉयलेट बाथरूम में 2 दरवाजे दाखिल होने के, तो 2 मकान उसमें बाजू के मकान में मर्द ठहर सकते। तो कहाँ का पर्दा लगाना है? कभी कभी ऐसा होता है टॉयलेट बाथरूम आंगन में है, हाँ, और इतना लंबा पर्दा तो नहीं बांध सकते, तो उसके अतराफ में, हाँ, बैतुल खला के अतराफ में टॉयलेट पर्दा बांध दो, मस्तूरात बुर्का पहनकर जाएगी, बुर्का पहनकर आ जाएगी। कभी ऐसा होता है कि मस्तूरात जिस कमरे में ठहरी, वो कमरा डायरेक्ट रोड पर है, यानी चारा आम पर है, डायरेक्ट मेन रोड से डायरेक्ट अंदर आप चले गए, वहीं पर कयाम है, पर्दा लगा हुआ है। मुकामी औरतें आती, पर्दा उठाती, बेपर्दगी आ रही, बेपर्दगी, वहां डबल पर्दा लगाओ, एक अंदर एक बाहर। बहन आई, एक पर्दा उठाई, अंदर का पर्दा गिरा हुआ है, अंदर का उठाएगी, पीछे का पर्दा गिर जाएगा, बेपर्दगी नहीं होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे पर्दा फर्ज तो नहीं, लेकिन बड़े नजर आते हैं, उनसे बहनें शर्माती है, थोड़ी शर्माती है, फ्री नहीं रह सकती वो। तो ऐसे बड़े बच्चों को अपने साथ मोहब्बत से मस्जिद में ले लेना, ताकि बहनें आराम से रह सके घर में। बेउसुली का शोर नहीं मचाना, बेउसुली के साथ कोई काम नहीं करना, किसी मकान को रद्द नहीं करना, कैंसिल नहीं करना। अगर आपने मकान रद्द कर दिया, साथ ही बेचारा टूट जाएगा, काम से दूर हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई निजामुद्दीन से जमात आई थी, आपका मकान कैंसिल कर दी, आपके घर में कभी भी जमात नहीं ठहर सकती। हम मकान खोलने जा रहे, बंद करने नहीं जा रहे, क्या वजह है उस मकान में ठहरने की, उस वजह को दूर कर दो, ताकि उस मकान में हमेशा जमात ठहर सके। आप नए नए मकान तलाश करोगे, नए मकान वालों को पता नहीं है कि माइक कहाँ लगाना है, स्पीकर कहाँ लगाना है, बात मर्द कहाँ बैठेंगे, मकसद कहाँ बैठेंगे, सारी सेटिंग आपको करके देना है, ताकि उनके लिए सहूलत हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह से। मकान आपने देख लिया, आपको इत्मीनान हो गया, अब मस्तूरात को अंदर भेज दो, मस्तूरात अंदर जाएगी, मकान वालों से मिले, ऐसे नहीं जाके नमाज के लिए उनसे मिलो, औरतों से मिलो, नाम बताओ, मुनासिबत पैदा करो। उसके बाद उनसे कहना कि देखो आप लोग 3 बहनें रहती है यहाँ पर, हम 5 बहनें आई है, आप हमारी जमात में 2 दिन तक हम सब एक जमात है, 8 बहनों की एक जमात है,
हिकमत से उनको जमात में शामिल कर लेना, मशवरा का पर्चा पढ़ के उनको सुनाना, वो सुनेंगे तो उनको पता चलेगा अच्छा इतने बजे तालीम है, इतने बजे मुज़ाकरा है, इतने बजे ये है, सारे अमाल का टाइम उनके सामने आ जाएगा तो आपका साथ देगी इंशाल्लाह। उसके बाद आप सुबह आप जो है चाहे चार्ज पढ़ना चार्ज को चार्ज पढ़ लो, कुछ खाना पीना नाश्ता करना कर लो, उसके बाद आप तालीम शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास मशवरे का पर्चा मौजूद है। मशवरे का पर्चा पढ़ो और अपनी जमात की बहनों को भी सुनाना और मुकामी घर वालों को भी सुनाना। सुबह की तालीम 2 घंटे की होगी, 40-40 मिनट 3 अमल कर लेना, कुरान का हल्का लगा लेना, किताब पढ़ लेना और चीज बात का मजा। कुरान का हल्का वो बहन लेगी जिसका कुरान अच्छा हो, आलिमा बहने बहुत अच्छी बात है, हाफिजा बहने अच्छी बात है, वरना जो बहने पुरानी है कुरान अच्छा जानती हो हल्का लेगी। हल्के में एक एक आयत सही कराते हुए आगे बढ़ना, ऐसे नहीं कि पूरा सूरह फातिहा पढ़ ले, नहीं, एक एक आयत पढ़ो सही करो फिर आगे बढ़ो, एक एक आयत पढ़ो सही करो फिर आगे बढ़ो। इस तरह से कुरान के हल्के में हमारी नमाज इतनी चिल्ले में हमारे हम सबकी नमाज मुकम्मल हो जावे अच्छी तरह, दुरूद शरीफ भी है, दुआ कुनूत भी है, तहज्जुद की सारी परफेक्ट नमाज हो जाए, इसकी कोशिश करो। मुकामी बहनें सुबह की तालीम में आई है, आप हजरात इत्तलाई गश्त करोगे ना, इत्तलाई गश्त आप दोनों टाइम की तालीम की दावत चलाए हो, सुबह की कुछ बहनें आएगी, सुबह में आने वाली बहनों को कुरान के हल्के बैठने की जिद नहीं, वो किनारे पर आकर बैठी, अरे आप आओ ना हल्के बैठो ना, आओ ना, उनको जिद किया आके बैठिए। अब उसको बोले आप पढ़ो, उसको पढ़ने की जिद मत करो, अरे आप पढ़ो ना, अरे पढ़ो ना, उसकी जान खा रहे, पढ़ो पढ़ो। वो बेचारी शर्मा के पढ़ी, अब पढ़ी तो गलती पूरा गलत पढ़ी, अब आपने बोले ओहो आपा आपकी तो कितनी गलतियां हैं कुरान में, सूरह फातिहा आपका सही नहीं है, आपकी 50 साल की उम्र होगी आपका सूरह फातिहा भी सही नहीं। बोले देखो मैं अभी जाती हूँ, सही करके आऊंगी इंशाल्लाह। वो जाएंगे तो कभी नहीं आएंगी, जाएंगे तो कभी नहीं आएंगी, किसी जमात के पास नहीं आएंगी, ऐसी गलती करना नहीं। उसको पहली बात तो अपनी जिद नहीं करो बैठने की, बैठ गई तो पढ़ने की जिद मत करो, पढ़ेगी तो गलती मत करो, पढ़ने दो, पहली बार है तो बस हल्का हो जाए, उसके बाद तरकीब दो कि देखो बहनों कुरान का पढ़ना नमाज में फर्क, अगर न कुरान सही नहीं पढ़ा गया तो नमाज कबूल की नमाज अदा भी नहीं होगी, और गलत कुरान पढ़ने से बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है, ऊपर तक पहुंच जाता है, नमाज मुंह पर मार दी जाती है, नमाज बदवा देती हुई जाती है। उनको सारी बातें बताओ कि कुरान का पढ़ना कितना जरूरी है, फर्ज में से फर्ज है नहीं। हाँ, इस तरह से हम सब नियत करो कि अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, कुरान से ही करेंगे, वो सारी कहेंगे हाँ इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते जाएंगे, उनके नाम लिख लो, अब कौन कौन जाएगा। अच्छा अभी आप कुरान का हल्के से भी तश्कील होगी, क्योंकि आप उनको कमियां बताओगे ना तो उनको बुरा लगेगा, वो शर्मा जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन जब वो अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो सहाबा का आईना सामने आएगा, सहाबा का आईना सामने आएगा, तो हमारे कुरान की कमी, उनके नमाज की कमी, उनके पर्दे की कमी, उनकी हर चीज की कमी सहाबा के आईने में देखेंगे तो अपनी कमी दूर कर देंगे। काम कभी बताएगा तो बुरा नहीं लगेगा, हम कभी बताएंगे तो बुरा लगेगा। हमारा हर इलाज, हम हर काम का इलाज क्या है, तश्कील। मैंने कहा ना फैक्ट्री में कारखाने में उनको डाल दो, अब वो सब बनता रहे, नमाज भी बनेगी, कुरान भी बनेगा, तकवा भी बनेगा, तो वो सब चीज बनती जाएगी। फैक्ट्री में डालो, तश्कील करो, जमात रवाना करो, तश्कील करो, जमात रवाना करो, तो काम होता जाएगा। समझ में आई बात। किताब जो पढ़ी जाएगी, सुबह में मुंतखब हदीस पढ़े हैं दोपहर में अमाल सदकात पढ़ना, अगले दिन सुबह अमाल सदकात पढ़ेंगे, दोपहर में मुंतखब पढ़ेंगे, किताबें बदल बदल के बहने पढ़ेगी। मर्द हजरात सुबह मुंतखब पढ़ेंगे और दोपहर में अमाल सदकात पढ़ेंगे, अगर आप लोग तालीम करोगे। मुझे लगता नहीं आप लोग तालीम करोगे, अभी से सो रहे तो क्या करेंगे। मसला जब हम भी चले ना, सुबह की तालीम में क्या होता है आपको बताता हूँ। एक गया था बाजार लेने, एक गया था चार्ज पढ़ने, एक बोलता मेरी कमर में दर्द में लेट रहा हूँ, एक बोलता मैं फारिग होने जा रहा हूँ, तो तालीम कौन करता। हमको सब मालूम है, हम भी सब चीजें गुजर चुके हैं। हाँ, लेकिन आप लोग तालीम करना, अच्छे लोग भले लोग करना, आप लोग तो तालीम करोगे तो रोजाना सुबह मुंतखब पढ़ना, दोपहर में अमाल सदकात पढ़ो, लेकिन मसरूरात किताबें बदल के पड़ेगी। समझ गए मेरी बात। जब मसला लिखो ना तो किताब भी लिख दिया करो, किताब लिख देना कि आज आपको कौन सी किताब इस वक्त पढ़ना है, ताकि उसको भी ध्यान दें। अहम बात यह है कि बंगला बोली वाली जमात गई तमिल के इलाके में, बंगला वाली जमात तमिल इलाके में गई, तो दोनों भाषाओं में तालीम, सुबह शाम, मैंने कल जो बताया था ना, दोनों भाषा में सुबह और दोपहर की तालीम दोनों भाषा में होगी। बंगला की तालीम जमात की होगी, तमिल की तालीम मुकामियों की होगी। सुबह में बंगला का 6 सवाल का मुजाकरा जमात का होगा, तमिल का 6 सवाल का मुजाकरा मुकामियों का होगा। इस तरह से दोपहर में बंगला में तालीम और तमिल में तालीम, बंगला में मुजाकरा बयान और तमिल में बयान, यानी दोनों तालीमें जमात की भी है, मुकामी की भी। इस बात को समझो, जमात जैसे बच्ची सुबह की तालीम हमारी है प्राइवेट तालीम, और जमात की भाषा में तालीम हो जाती है। बोले दोपहर में मुकामी ज्यादा आएंगे, मुकामी भाषा में तालीम कर लो तो मुकामी की तालीम होती है। तो सुबह में मुकामी की तालीम नहीं हुई 40 दिन तक, दोपहर में जमात की तालीम नहीं 40 दिन तक, ऐसा काम नहीं करना। दोनों भाषा में दोनों हल्के लगे। समझ में आई बात। मुकामी बहन का तय कर दो, मुकामी तालीम कर लेगी,
जमात की तालीम कर लेंगे। इस तरह से दोनों भाषा में तालीम होना चाहिए। सुबह की तालीम में अटक अटक के किताब पढ़ने वाली आप तालीम तय कर सकते, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सुबह की तालीम में मजमा कब रहता है, प्रैक्टिस हो जाएगी। दोपहर में अच्छी तरह पढ़ने वाले की किताब तय कर। 6 सिफात का मुज़ाकरा, हाँ, ये एक पहले किताब तय करोगे, एक पहले का मुज़ाकरा तय करोगे। पहले 6 सिफात के मुज़ाकरे में हदीस से सीखे, 40 दिन में कम से कम 40 हदीस सीख कर आवे। हाँ, हो सके तो हर सिफात पर 10-10 हदीस सीख लो, 60-70 हदीस सीख लो। हमारा पूरा मुज़ाकरा कुरान हदीस की रोशनी में होगा, 6 सिफात के दायरे में। इसलिए बहने आप हजरात भी हदीस से सीखने की आदत डालें, करेंगे इंशाल्लाह। इस्तिकबाल वाली जो आपने तय करी है, इस्तिकबाल वाली का काम सुबह से शुरू होता है, सिर्फ दोपहर में नहीं है। और सुबह से लेकर शाम तक उसको इस्तिकबाल करना है, क्योंकि बहनें किसी वक्त भी आ सकती है, उसको इस्तिकबाल करना है। सुबह में बहनें आराम कर रही तो एक इस्तिकबाल में बहन जागेगी, क्योंकि अगर कोई बहन आई और सारी बहनें सो रही है, वो देखेंगी जमात की बहनें सो रही है, मुलाकात करे बगैर चली जाएगी, उसको दावत नहीं पहुंचेगी, उसकी तश्कील रह जाएगी। अगर इस्तिकबाल को आराम का तकाजा है, एक बहन को जगा दी कि बहन 1 घंटा मैं आराम करती, तुम जाग लो, कोई बहन आएगी उसको लेकर आप बैठ जाना। अब जमात बहन सो रही तो बहन जो आई है ना, उसको कोने में लेकर बैठे, धीमी आवाज में उसको दावत से, उसकी तश्कील से उसको रवाना करें। इस तरह से सारी बहनें एक साथ नहीं सो जाओ। दोपहर की तालीम में 1.5 घंटे का टाइम होता है, आधा घंटा किताब पढ़ना है। एक दिन आमाल सत्कार पढ़ेंगे, दिन मुंतखब पढ़ेंगे। किताब पढ़ने वाली अच्छी अल्फाज में, अच्छे यानी अच्छे अंदाज में किताब पढ़े, समझाइश के अंदाज में किताब पढ़े, मुश्किल अल्फाज के मायने बताना, ठहर ठहर की किताब पढ़ना। रवानी में तेज स्पीड में पढ़े जा रही है, जैसे ट्रेन चलती है और पढ़े जा रहे हैं, सब धोखे मारे, सब बोले बोले पढ़े जा रही है। मजमे को मुतवज्जे करो, समझाते रहो, थोड़ा सा समझाइश का अंदाज हो, समझाने की समझाइश का अंदाज। उस वक्त किताब पढ़ते पढ़ते कोई मुज़ाकरा नहीं करना, सिर्फ किताब पढ़ना है। दोपहर में ईमान और दावत पर ज्यादा पढ़ना, और अगर आप अमल फज़ाइल अमल पढ़ोगे ना, तो हिकायत सहाबा में से साहबियात के वाक़ियात पढ़ो, फज़ाइल तबलीग ज्यादा पढ़ना। बयान भी आपका होगा ना, ईमान और दावत का गलबा है। आधा घंटा किताब होगी, 35-40 मिनट का बयान हो जाएगा। आधा घंटा 35-40, आधे घंटे से कम बयान नहीं हो, 40 मिनट से ज्यादा नहीं हो। बयान में ईमान और दावत का गलबा है। बयान करने वाले जो बात करेंगे उसमें हंसने हंसाने वाली बातें, रोने रुलाने वाली बातें, शेर और शायरिया, ख्वाब के तस्करे, किस्से, कहानियां, या वहाँ की बगैर तरह की बातें, वो बातें जिनका ताल्लुक शर्म है, ऐसी बातें नहीं करती। सीधी सादी कुरान हदीस की बात करो, 6 सिफात की बात करो, ईमान दावत पर ज्यादा बात करो। पर्दे का इशारा करना है, पर्दे की बात करना है, थोड़ी बहुत मुख्तसर, पूरी बात पर्दे की नहीं कर देना। बेपर्दा को जहन्नम में नहीं बना देना, वरना वो कभी नहीं आएगी। और बोले जब जहन्नम में जाना तो क्या जाए तालीम। पर देखो जैसे मर्दों के बयान में दाढ़ी को नहीं, दाढ़ी का बयान सुना, कभी दाढ़ी का बयान सुना आपने? तो ऐसे जैसे ईमान की कमजोरी तो दाढ़ी में, ईमान बनता है दाढ़ी आ जाती है, ईमान बनेगा पर्दा भी आ जाएगा। हिकमत से काम करो। आपने आधा घंटा बयान करे, बयान जमात के साथी करे, मुकाबले से बयान नहीं करा, जमात के साथी का बयान चाहिए, क्योंकि कुर्बानी मुहाजिर की है, और कुर्बानी के असर बयान के अल्फाज के असर आती है। हाँ, मुहाजिर की कुर्बानी के असर आती है। बयान आप सारे साथी बयान करना है, शर्माना नहीं, घबराना नहीं। मैं बता दोपहर में पर्दे के पीछे से बात करना है तो क्या घबराने का, सबने पढ़ रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है, सारे साथी बयान करें, बारी बारी सबका नंबर लगा। उसके बाद तश्कील का मौका था, ये बहुत अहम है। 15-20 मिनट तश्कील के दी जाए, 5 बहनें, पांचों बहनें तश्कील करेंगी, चाहे पढ़ना आता है, लिखना आता है, नहीं आता कोई बात नहीं, हर बहन के हाथ पे कॉपी पेन होगी और हर बहन तश्कील करेगी। ये तश्कील खास जमात की बहनों की आदत डालने के लिए, उनका तश्कील का मिजाज बने, दावत का मिजाज बने, दायरा मिजाज बने। बहनें 5 बहनें फैल कर बैठो, 25 बहनें 5-5 को लेकर बैठो, 20 आइए 400 को लेकर बैठो, 5 आइए एक-एक को लेकर बैठो, लेकिन 5 हल्के लेना चाहिए। अल्लाह के रास्ते की फजाइल बताओ, सहाबियात की कुर्बानियां बताओ, और हम निकले अल्लाह के रास्ते, हमने क्या सीखा, हमको कितना नफा हुआ, हमको कुछ नहीं आता, हमने क्या क्या सीखा बताओ। हाँ, हम कैसी कुर्बानी से निकले, हमारे आजाद से, हमारी परेशानी से कैसे हमको अल्लाह ने निकाला बताओ, उनके हुजूर का बताओ। ये थोड़ी बहुत दिन की बात करके फिर उनकी तश्कील शुरू करो। मर्दों की जमात की तश्कील, हाँ 4 महीना है, 5 महीना बैरून में चिल्ला है। माँ मसूरा जमात की तश्कील, हाँ 2 महीना है, चिल्ला है, 10 दिन है, 3 दिन। उसके बाद अपने घरों में बहनें 5 अमल से तालीम जिंदा करें। 5 अमल में कुरान का हल्का है, और किताबी तालीम है, और 6 सिफात का मुज़ाकरा है, और तश्कील मशवरा है। 5 अमल के साथ उनको तालीम समझा। उसके बाद चौथी तश्कील करना, अपने घरों में कौन जमात को ठहराने तैयार है, अपने घरों में जमातों को ठहराने की तश्कील। और 5वीं तश्कील जो है, मोहल्ले की तालीम में एहतिमाम से बहने पहुंचे और मोहल्ले की तालीम बढ़ाने की तश्कील। इस तरह से आपको 4-5 तश्कील करना है। फर्ज आपके हाथ में आ जाएगा, उसके बाद दुआ करना। कभी भी तश्कील से पहले दुआ नहीं करा देना, अरे हमारे असर की नमाज जारी, हम दुआ करके जाते, आप लोग तश्कील कर लेना, आपने पूरा मामला बिगाड़ दिया। बहने दुआ के बाद चली जाएगी, तश्कील रह जाएगी।
اس کے اگر آپ نے بات مائک سے کی ہے، بہنیں دور بیٹھی ہے تو وہیں بیٹھے رہو اور چائے مت پی لو اس ٹائم، ورنہ تشکیل ہو رہی ہے آپ چائے پی لو، آپ جو اس وقت دعا میں لگنا ذکر میں لگنا آپ بھی تشکیل کرو، پرچہ آ جاؤ اس کے بعد دعا کرا لو. تو اگر پردے کے پیچھے سے بات ہوئی ہے اور بہنوں کی آواز آ رہی ہے بے پردگی ہو رہی تو آپ مکان کے باہر چلے جاؤ، انتظار کرو، پرچہ آ جائے گا، اندر جا کے دعا کرو. اس طرح سے شام کے تعلیم ہو جاؤ. اور میری بات اثر کی نماز کے بعد کوئی اجتماع عمل نہیں ہے. کچھ مقامی بہنیں بیٹھی ہے تو ایک بہن جو استقبال والی تھی اس کو دیکھ کر اختلاف کر لے، ان کے ساتھ کچھ اچھی باتیں کر لے، ان پہ روانہ کر لے. میں پتا نا کچھ بہنیں بیٹھیں گے، ان پر بیٹھنا، ان کی بات سننا، ان کو تسلی دینا اور پھر روانہ کر دینا. مغرب تک کس کو روکنا نہیں، اور کوئی رک جاؤ تو اس کو دھکے مار کے بگانا بھی نہیں. ان کی مرضی بھائی. ہمارا اصول ہے ہم مغرب کی بات کی کوئی دعوت دیں گے نہیں، لیکن کوئی رکے گا تو اس کو پھر دھکے مار کے بگانا نہیں. بیٹھے ان کی مرضی بھائی، قریب میں ان کا گھر ہے، وہ جانے ان کا کام کریں. مغرب کی نماز کے بعد آپ نے عوامین پڑھ لی، اپنے معاملات پڑھ لی، پھر ملک ہے، پھر سلطہ ہے، پھر واقع جو بھی آپ کا معاملہ ہے تو پڑھ لو. اس کے بعد مذاکرہ کرو. 40 منٹ کا مذاکرہ ہوگا. دو بہنیں 20-20 منٹ مذاکرہ کریں. دو بہنیں طے کرنا 20-20 منٹ دو بہنیں مذاکرہ کریں. یہ مذاکرہ وہ ہوگا جو آپ نے فجر میں بات کی تھی اسی کی روشنی میں مذاکرہ ہوگا. فجر میں جو آپ بات کرو گے جس عنوان پر وہی مذاکرہ آپ مغرب پہ دو. اس طرح سے مغرب میں مذاکرہ ہو جائے گا. عشاء کی نماز کے بعد کوئی اجتماع مل رہی ہے. عشاء کی نماز کے بعد بہنیں جلدی آرام کر لیں گے. بہنیں جلدی آ جائیں. ہر بہن کے پاس اپنی اگر ٹارچ ہو تو بہتر ہے کہ اپنی ٹارچ کو اپنے معاملات پڑھ لے. تاجر میں اٹھے گی تو لائٹ نہیں چالو کرو، نہ مسجد میں لائٹ چالو کرو نہ گھر میں. صبح شادی کے بعد ہی لائٹ چالو ہونا چاہیے، یہ اصول ہے. یہ بہتر اس لیے ہے کیونکہ کوئی لوگ سو رہے ہیں، آپ نے لائٹ چالو کر ان کی نیند خراب ہو. تہجد پڑھنا نفل ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. اس کے نہ شور مچانا تہجد میں، نہ لائٹ چالو کرنا، نہ بدگمانی کرنا. دیکھو جب سوئی رہتی ہے تو تہجد پڑھتی تھی، وہ پڑھی نہیں پڑھی ہماری تہجد تو گئی. ان کو کیا 1 بجے پڑھ لیے 2 بجے پڑھ لیے. ہاں اس سے دیکھنا نہیں کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے، تجسس نہیں کرتا. وہ تہجد پڑھی نہیں پڑھی، وہ اشراق پڑھی نہیں پڑھی، قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرما دیا لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر. ہم نے آپ کو داروغہ نہیں بنایا. نبی جی داروغہ نے تو ہم کون ہے؟ ہم کو کیا تجسس کرنے کی، جاسوسی کرنے کی نہیں. کوئی تو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. چھوڑ اس طرح اپنی ٹارچ پر اپنے معاملات پورے کر لیں. عشاء کے بعد کوئی اس کے معاملات نہیں. فجر کی نماز کے بعد بہنیں جلدی فجر پڑھی، اول وقت فجر پڑھ لیتی. آپ لوگ کی فجر دیر سے ہوتی ہے. 40 منٹ کا گیپ رہتا ہے تقریباً، 40 منٹ کا آدھے گھنٹے ان کو موقع ملتا ہے. یہ آدھا گھنٹہ ان کے پاس ہوتا ہے. اس میں انفرادی سیکھنا سکھانا ہے. کسی کو 6 صفات سیکھنا ہے، کسی کو قرآن سیکھنا ہے، کسی کو دعا سیکھنا ہے. ان کو انفرادی سیکھنے دو. کسی کو آرام کرنا ہے. آپ یہاں سے طے مت کرو کہ اس میں آپ کو یہ کرنا ہے. انفرادی حلقے کا موقع ہے، اچھی بات ہے اگر آپ کچھ سیکھ لو. فجر کے بعد فوراً 2 ساتھی چلے جاؤ بات کریں. 3 ساتھی مسجد میں رہیں گے. مسجد کے جو کام ہے، آبادی کا عمل ہے، ملاقات ہے، تشکیل ہے، وہ کرنا. 2 ساتھی بات کرنا چاہیے. ہاں فجر کے بعد جو بات ہوگی وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے سے 25 منٹ آدھا گھنٹہ بات ہو. فجر کی بات میں اوقات گزارنے کی بات ہو، ہمت افزائی کی بات ہو، آپس کے جوڑ کی بات ہو، فکروں کی بات ہو، اور 6 صفات کا مذاکرہ کیسے کرنا ہے اس کو سمجھایا جاوے. 6 صفات کا مذاکرہ الگ الگ ایک ہی صفات پر بات ہو جاوے. گھروں کی معاشرت کی بنیادیں پاکیزگی ہے، سادگی ہے، حیا ہے، اور بچوں کی ذہنی تربیت ہے، اور سنتوں کا مذاکرہ ہے، اور اپنے شوہر کی معاونت ہے. یہ سارے مذاکرے اللہ تعالیٰ سے بھیجنا ہے، قربانی کو بڑھانا ہے. شوہر کے حقوق نہیں دینا، شوہر کے حقوق نہیں دینا. بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق زیادہ. بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق زیادہ ہے. 2 دن پہلے حضرت جی نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے ذمے کھانا پکانا نہیں ہے، کھانا مرد کے ذمے. مرد کے ذمے کھانا بنانا ہے، عورت کے ذمے کھانا بنانا بھی نہیں ہے. سمجھے؟ ابھی سن لی ساری بات. ابھی آپ کو گھر جا کے ملے گا کہ اللہ تو یعنی حقوق بیوی کے زیادہ ہے. ہم تو بیوی کے حقوق کا مذاکرہ کرتے نہیں اور شوہر کے حقوق دیتے ہیں. تو بیچاری چلا لگانے آ گئی تھی کیا باقی ہے. اس کے لیے سارے امور سوچ سمجھ کے ضرورت کر لیں گے انشاءاللہ. ایسے یہ ضرورت کام ہوگی. اب چند باتیں جس کا بوجھ پڑتا ہے مقام پر وہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا ہے. کرنے کے کام کم ہے تو نہیں کرنے کے کام زیادہ ہے. مستورات اور ہم بھی دسترخوان پر دیر تک بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے. بیٹھ کے دسترخوان پہ باتیں چل رہی ہیں، بچوں کی باتیں، اسکول کی باتیں، مدرسے کی باتیں، کمائی کی باتیں، باتیں نہیں کرتے. 15 منٹ میں کھانا ہو کتنی دیر میں 15 منٹ میں کھانا ہو جاؤ. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا 15 منٹ بھائی 16 منٹ میں دسترخوان اٹھ جاؤ. پتا خدمت والے پریشان رہتے بولے باتیں چل رہی ہے، ان کو کچھ بولے گی مہمان کو کچھ بول نہیں سکتے. کھائیں گے تو اتنا ہی، لیکن باتیں سے وقت بہت ضائع جاتا ہے. دوسرا چیز جو ہے بہنیں دیر تک رات کو جاگے نہیں. دیکھیے گھر والی کو جماعت کے بعد سونا ہے، جماعت کو اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتا ہے. تو ہم جلدی سو جائیں گے تو گھر والی جلدی سوئیں گی.
اس کا اٹھنا آسان ہو جائے گا. تو بہنیں رات کو دیر تک جاگے نہیں, جلدی سو جاؤ. تیسری چیز کا بوجھ پڑتا ہے محرم حضرات بار بار ملاقات کرنے نہیں جاتا. ہاں ایسی بڑے عجیب جماعت ہے, ہر ایک گھنٹے میں کوئی نہ کوئی جا رہا ملاقات کرتے ہیں. تو اسماعیل پہ گئے تو ابوبکر پہ آ گئے, ابوبکر پہ گئے تو ساجد پہ آ گئے, ساجد پہ گئے تو یونس پہ آ گئے, یونس پہ گئے شاکر پہ آ گئے. چل ہی رہا ہے. تو گھر والے بڑے کیسی جمع گئے, تھک گئے وہ بیچاری بلا کے, بھائی ایسے کام نہیں کرنا. اور ان کے اجتماعی عمل کے وقت جانے ہی نہیں. 10 سے 12 تعلیم آپ 11 بجے پہنچ گئے, اہلیہ فلاں پوری تعلیم پوری تعلیم ڈسٹرب ہو گئی. تعلیم خراب کر دیا آپ نے. ایسے کام مت کرو بھائی. اور اثر بعد مغرب بعد ملاقات سے نہیں جانا, دن میں 2-3 بار بھی نہیں جانا. ہاں بلکہ صبح میں جو ساتھی تو گئے نا مذاکرہ کرنے, وہ جو ساتھی آج ملاقات کر لیں گے, کل دوسرے 2 ساتھی جائیں گے وہ آج ملاقات کر لیں گے. 2-3 دن میں ایک بار ملاقات کر لیں. ملاقات کرنا کام کا حصہ ہے, منع نہیں ملاقات کرنا, لیکن 2-3 منٹ کی ملاقات نہیں کرنا, 10-15 منٹ کی ملاقات نہیں کرنا, 7-8 منٹ کی ملاقات کرو. تو چند کام اہم کرنے کے, ان سے پہلے آپ پوچھو آرام ملا نہیں ملا. میں نے آپ کو بتایا 20 رات ہوتی 20 رات جاتی. آرام کو پوچھو, کھانے کا پوچھو, اور طبیعت پوچھو. 3 چیز پوچھ لینا. ہاں آرام, طبیعت اور کھانا, وہ خوش ہو جائیں گے. بولے کہ تم کتنا اچھا خیال رکھتے ہو میرا, ہاں کو خوش کر دو. دوسری بات ان سے پوچھو کہ آپ نے کیا سیکھا, وہ کہیں میں نے دعائے قنوت سیکھا. تو شروع کر دے سننا, لیکن آپ کو بھی آنا چاہیے. میرے کو نہیں آتی سنا دی بیچاری, ایسا نہیں, آپ کو آنا چاہیے وہ چیزیں سننا. ان سے پوچھو کہ میں نے آپ کا مذاکرہ طے کرا ہے نبی صاحب کو بول کے, تو آپ نے مذاکرہ کی. وہ بولیں گے ارے 50 عورتیں تھی سامنے, میں تو گھبرا گئی, میری ہمت نہیں مذاکرہ کرنے کی. میں نے بڑی آپ کو دے دیا مذاکرہ. اب آپ پوچھتا ہوں ارے تیرے کو لانے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے, مذاکرہ نہیں کری تو میں نے ناک کٹوا دی. میں نے امی صاحب کو بڑی بات کیا تھا, میری دلی کر لے گی, پورا کانفیڈینس ہے میرے کو, اور تم نے مذاکرہ نہیں کیا. تو کوئی کام کی نہیں ہے, تیرے کو لا کے بیکار میں لے کے چلے گا, اگلی بار کب ہوگا نہیں کچھ طرح سے کام. آپ نے اس کی ہمت توڑ دی, وہ کبھی مذاکرہ نہیں کر پائے گا. ہمت بندہ کیا نا, ہمت توڑ کے نہیں آنا, غصہ کر کے نہیں آنا, ڈانٹ کے نہیں آنا, مجھے سمجھانا کہ دیکھو انشاءاللہ میں دعا کروں گا, صدقہ دوں گا, نماز پڑھوں گا, تم بھی نماز پڑھ کے دعا کرو, اللہ مدد کریں گے. ہم کو دعوت دینا ہے, دعوت سے ایمان بنتا ہے. ایمان کی بات کرو, جہاں تمہاری گاڑی اٹکے نماز پہ آ جانا, نماز پہ اٹکے تو علم پہ آ جانا. اس طرح مذاکرہ کو سکھانا کہ ایسے سے مذاکرہ میں آگے بڑھتے رہے. پھر انشاءاللہ وہ مذاکرہ ہمت سے کر لے گی, اور جب وہ مذاکرہ کر لے گی تو گھر پہ آ کے آپ کو مذاکرہ روزانہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں سمجھ میں آئی بات. تو ان کو دعوت دینے والی بنا کے آنا. اور تیسری چیز ان سے پوچھو, جو بہنیں آتی محلے کی بہنیں آئی تھی, ان کا کیا مزاج ہے, ان کے کیا حالات ہے. نماز آتی ہے ان کو نہیں آتی, غسل وضو کے فرائض آتے نہیں آتے, کلمہ آتا ہے نہیں آتا ہے, پڑھتا ہے نہیں ہے, ان کے حالات پوچھو. بیان مائک کی آواز آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی, بچوں کا شور تو نہیں تھا, ہاں طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے. ان سے دوسری عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھنا کہ ساجد بھائی کی بیوی کیا کرتی ہے, عارف بھائی کی بیوی کیا, ارے بولے وہ تو سوتے رہتی ہے. 10 بجے کی تم تعلیم دے کرتے ہو تو 11 بجے آ کے تعلیم بیٹھتی ہے. اچھا کل فجر میں بتاتا ہوں. اب تم نے سارا بیان سونے پہ کر دیا, اندر جھگڑا ہو جائے گا. بولے تم نے میری شکایت کی میرے صاحب کو, میرے صاحب نے پورا بیان میرے پہ کر دیا. تو ایسی شکایت نہیں کرتی, کسی کی دوسرے کی پوچھنا نہیں, کون کیا کرتے کون کیا نہیں کرتے. ارے تمہاری بیوی کیا کرتی ہو دیکھو, دوسرے کی بیوی کیا کرتے ہو اس سے کیا کرتے. تو ملاقاتوں میں شکایت نہیں کرنا, چگلیاں نہیں کرنا. کوئی بات مردوں میں ہو گئی وہیں پر اس کو ختم کرو, مسئلہ تک نہیں پہنچا. کوئی بات مسئلات میں ہو گئی, مسئلہ پہ اس کو ختم کرو تو مردوں تک نہیں پہنچا. اس طرح سے آپ لوگ سمجھدار لوگ, بڑے لوگ اس طرح سے کام کرتے. چوتھی چیز جس کا بوجھ پڑتا ہے, آپ لوگ نئے مکان میں ہوگے نا, انشاءاللہ نئے مکان تلاش کرتے. نئے مکان والے بیچارے گھر تو دے دیے, اتنے دیندار نہیں ہے, تھوڑے ماڈرن ہے, ان کے گھروں میں بڑے بڑے ٹیلی ویژن ہے, تصویریں لینے کے ان کے گھروں میں. بچوں کے کپڑے بھی جو ہے تو وہ انگریزوں جیسے کپڑے ہیں. اب ہماری بہن سے کہتے ارے آپ تمہیں جماعت ٹھہرائی ماشاء اللہ, لیکن تمہارے بچوں سے دیکھو یہودی اور عیسائی کے بچے دکھتے ہیں, اور تمہارے گھر میں اتنے بڑے بڑے شیطان ہیں, تصویریں بھی ہیں, نماز کیسے ہوتی ہے تمہارے گھر میں. تو کیا بولے گی, دیکھو بہن ہم نے جماعت تو ٹھہرائی لیکن ہماری غلطی ہوگی, آئندہ جماعت ہی ٹھہرائے گی. کیا بولے گی, آئندہ جماعت ہی ٹھہرائے گی. تو یہ سمجھنا کہ 2 دن میں تھوڑی سب نکل جائے گا, بلکہ 2 دن میں ان کو ایسا مانوس کرو, ان پر ایسی محنت کرو کہ تیسرے دن کہیں گے ہم آپ کے ساتھ آگے چلتے. تیسرے دن ان کو اپنے ساتھ لے کے چلو 3 دن کے لیے, ان کو نکالو, وہ نکلیں گے تو گھر کا سب کچھ نکل جائے گا. نکلیں گے نا. میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا, تشکیل جو ہے سارے بیماری کا علاج. جب ان کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلو گے تو گھر کے سارے خرافات نکل گئے. حضرت جی کے پاس امریکہ والے آئے, بولے ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن ہے, بڑے بڑے شیطان ہے, ہم گھر میں تعلیم کیسا کریں. حضرت نے فرمایا کہ امریکہ میں فرشتوں کے گھر کہاں سے لاؤ, فرشتوں کے گھر کہاں سے لاؤ, تم تعلیم شروع کر دو, اس کی برکت سب نکل جائے. تمہارا کام ہے ان کو نکالنا اللہ کے راستے میں, سب نکلے گا. تو اس طرح ہماری بہن کو تانا نہیں دے, جماعت ٹھہرانے کا تانا نہیں دے. 5ویں چیز جس کا بوجھ پڑتا ہے, جس کو بچنا ہے,
ان کے पर्सनल मैटर्स यानी उनके निजी मामला तो ना फैमिली मैटर्स होते हैं, पर्सनल बातें होती है, उसमें दखलंदाजी नहीं करना, पूछताछ नहीं करना, पंचायत नहीं करना, रिपोर्टिंग नहीं करना कि तुम्हारा शौहर कितना कमाता है, कितनी खर्च देता है, तुम्हारी बेटी की उम्र इतनी ज्यादा हो गई, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई उसकी बेटी की, तुम्हारी ननन बच्चों के साथ घर में हम देख रहे हैं 2 दिन से, क्या लड़के आएंगे शौहर से, कुछ मसला चल रहा है, सब बातें पूछना नहीं, वरना वो अपने शौहर से कहेंगे जमात तो आई है लेकिन तुम्हारी बेटी के बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में सवाल करती है, सच बताएंगे तो घर की बात बाहर जाती है और हम झूठ बोल नहीं सकते, तो मेहरबानी करके आइंदा जमात मत लेते। तो इस वजह से बहुत से घर बंद हो गए हैं, हम घर खोलने जा रहे घर बंद हो गए हैं, ये पंचायत की वजह से, ये रिपोर्टिंग की वजह से, हम पंचायत करने या सेटलमेंट करने कुछ नहीं जा रहा, हम तो दिन का काम करे जा रहे, ईमान से शुरू करना, दावत पे रुक जाना, उसके आगे नहीं जाना, लायनी पे जाना नहीं, उनके घरों में चलना फिरना नहीं, बरामदे में, बैलकनी में, खिड़कियों में बाहर झांकना नहीं, एक जगह चुपचाप बैठ के अपने अमाल करते रहना, करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को बरकत से सफर कबूल करना, अल्लाह आसान अल्लाह वर करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान बड़ी डायरी ले ये पड़ गई कितना ऊपर कुछ स्टेप लगी फिर